This conference will now be recorded. नमामि धन्वन्तरीरादिदेवम् सुरासुरवन्दितपादपद्मम् Oh, लोके Anyananda pehla hindi. दातारमीशम् विविधौषधीनाम् चक्रम् जलौका दधतृतघटम् चारुदोर्भिष्टकल्पी स्वच्छवादिभूत्यां शुकवैरिवसन् मौलिमं भोजनेत्रम् पादाम्बोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारु Nahin tayo. Total no corona. वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् Thank you very much, technical team. Very good afternoon and very warm welcome to all the delegates present for this meeting, and of course our esteemed speaker, Dr. Rishikesh Maitre sir. Very warm welcome to all of you. Today is Guru Purnima, and our Vandan to all our gurus who taught us from the beginning of our life. And today is the auspicious day for Iyashala also. According to the Hindu calendar or Tithi, today is the first birthday of Iyashala. We have recently celebrated our first birthday according to English calendar on the 5th of this month. And today is the first birthday according to Hindu calendar. So once again, thank you very much to all the delegates who supported us through our journey. And Iyashala is specially meant for the Ayurveda practitioner or BMS graduates who wants to practice Ayurveda. Our aim or motto behind start of Shala is to enable our BMS practitioners or BMS students to practice a specialty Ayurveda, a specialty practice whichever subject they are interested in. And for the same reason, we have till date accomplished around 22 series on different subjects like Panchakarma, Keralian Panchakarma, Basti Chikitsa, Vasanta Pakram, that is special series on Vamana, Garbhakshi series for those practitioners who are practicing integrated or allopathic medicine and want to practice Ayurveda, and then Kantana series on thyroid disorder, Karkachet series on cancer disorders, Madhumantan or diabetes disorder, Magic of Nine for Garbha, and then there are specialty series on infertility and gynecological disorders. And we are today announcing the special series on obesity, obesity management through Ayurveda, Stola management through Ayurveda, and the name is Sahanan. So welcome once again. Coming back to this session, this is specially meant session for all our delegates who are supporting us since long. And today, no other speaker can be invited rather than Dr. Vaidya Rishikesh Matre sir. He is the pioneer in Ayurveda and stalwarts of Ayurveda. So I welcome him once again, and I will request Dr. Namrata Patil Madam to please introduce today's speaker by the Rishikesh Maitre sir. Over to you, Dr. Namrata Patil Madam. Thank you, sir. Good afternoon, all. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha.
On this auspicious occasion of Guru Purnima, I bow my head to Lord Dhanvantari and all my gurus, including Vaidya Rishikesh Maitre sir, who is our guest lecturer for today to speak on the topic of Samhita clinical application. Sir is MD Ayurved Samhita from Gujarat Ayurved University, Jamnagar. He is a BA and MA in Sanskrit from Tilak Maharashtra Vidyapith, Pune. Sir has a vast academic experience of UG and PG teaching for more than 20 years. He is a pioneer to introduce and establish PGA CET preparation class in India. Till date, more than 450 students have been selected. He was a group leader for Ayursoft research project, interactive software for Triskanda Ayurved, CDAC Pune. He is a practicing Ayurved in Pune for more than 20 years and in Nasik for more than 10 years. He is conducting online course for Samhita and Tika Vachan, also online course for application of Tantra Yukti in Samhita and Tika Adhyayan. He is also conducting online course for PGA CET, MD Ayurved entrance preparation. He has his own YouTube channel with more than 2,000 subscribers. Sir has received Best Teacher Award by Vaidya Khadiwale Vaidyaka Samsthan, Dr. B. G. Ghanekar Utkrishta Adhyapak Puraskar. It is the highest honor considered in Maharashtra to be received from this samstha. With great respect to your work, I, Dr. Namrata Patil, feel honored to have introduced you, sir. Over to you, sir. Thank you. Vaidya Maitre, sir, you can start your lecture, sir. Hello. Hello, Dr. Mangesh Patil, sir. I have done with the introduction, sir. Okay, ma'am. Hello. Dr. Rishikesh, sir, are you there? आवाज येतोय का म्हटलं? चालू करू का? हाँ सर, चालू कर दो. आवाज येतोय? Yes, sir. आवाज येतोय. हाँ सर, येतोय सर. स्लाइड दिसतीये? पीपीटी दिसतीये का? Yes, sir. हो दिसतंय. सर, PPT दिसतंय. ओके ओके, चालू करूया. नमस्कार. गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः. आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ई आयुर्शाला इस संगठन की ओर से यहाँ पर संहिता क्लिनिकल एप्लीकेशन इस विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर अवसर दिया गया, इसलिए ई आयुर्शाला के संयोजकों का मैं आभारी हूँ, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. अधिकतर नैसर्गिक भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह व्याख्यान मैं इंग्लिश या मराठी के स्थान पर और बहुत सारे लोगों को सुबोध हो जिनको मराठी नहीं समझती, इसलिए हिंदी भाषा में प्रस्तुत करूंगा. संयोजकों की अनुमति इसलिए प्रार्थित करता हूं. संहिता क्लिनिकल एप्लीकेशन. आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह व्याख्यान दिया जा रहा है. आज ही के दिन आपके ई आयुर्शाला को 1 वर्ष संपन्न हुआ, इसलिए आप सभी का अभिनंदन. संहिता क्लिनिकल एप्लीकेशन. आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए जिन गुरुओं के कारण मैं आपके सामने ये विचार प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हूं, उन सारे गुरुओं को वंदन करके इस व्याख्यान का आरंभ करूंगा. माधवाय दिलीपाय विजयाय तुलाय च दिवाकर समीराभ्याम अनिलाय नमो नमः. माधव
अर्थात वंदनीय महागुरु स्वर्गीय वैद्य माधव कोलटकर सर, आदरणीय दिलीप गाडगीळ सर, आदरणीय विजय भंडारे सर, आदरणीय अतुलचंद्र ठोंबरे सर, आदरणीय दिवाकर जुवेकर सर, बहुत ही लोकप्रिय वैद्य, बहुत सारे विद्यार्थियों के वैद्यों के गुरु आदरणीय समीर जमगंदी सर, और जिस व्यक्ति के कारण मैं हूं, एक आयुर्वेद में मेरा कुछ अस्तित्व है, मेरी कुछ पहचान है, वह व्यक्ति अर्थात मेरी दृष्टि से जो साक्षात भगवंत है, वह स्वर्गीय वैद्य दानिल पानसई। इन मेरे सभी गुरुओं को नमस्कार करके यह व्याख्यान आज आरंभ करेंगे। ये है मेरे परात्पर गुरु, मेरे सन्मित्र और मेरे ईश्वर। आज से 3 महीने पहले भगवान के पास चले गए। उनके स्मृति को हर क्षण नमन करके यह व्याख्यान उनके चरणों में समर्पित करके आज के विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आगे बोले जाने वाले, आपके सामने रखे जाने वाले सारे विचार अगर आपको उचित लगे, स्वीकार्य लगे, योग्य लगे, तो वो सारी ये मेरे गुरुजी, मेरे भगवंत और मेरे मित्र स्वर्गीय अनिल पानसे का ही वह सामर्थ्य है। जो भी आपको कुछ अनुचित लगे, त्याज्य लगे, अस्वीकार्य लगे, गलत लगे, वो सारा मेरा दोष समझिए। मैं एक ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जिसका भगवान, जिसका गुरुजी और जिसका सन्मित्र उससे केवल 2 साल ही सीनियर था, और आज से 90 दिन पहले ये वैद्य अनिल पानसे स्वर्ग सिधारक है। उनके श्री चरणों में शत शत नमस्कार करके मैं ये आगे का व्याख्यान और उसका विषय विस्तार, उसके संदर्भ में मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अनिलाय नमो नमः। यद्यपि यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के रूप में निमंत्रित किया गया है, किंतु आई नो माई लिमिटेशंस, आई डू एक्सेप्ट देम, और मैं यहाँ पर एक निमंत्रित व्याख्याता के रूप में न होकर एक कल्याण मित्र संवाद के रूप में आपके साथ मेरे विचार बांटने के लिए उपस्थित हूं। संहिता एक क्लिनिकल ही है। बीएमएस करियर में ऐसा डिवीजन है कि क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, जिसमें संहिता को नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट माना जाता है। मैंने जहां से एमडी किया जामनगर से, वो मेरे एचओडी जो थे, मेरे जो गाइड थे राम बाबू द्विवेदी, वो कहा करते थे कि अगर संहिताएं नॉन क्लिनिकल है तो उन संहिताओं पर आधारित बाकी सारे डिपार्टमेंट क्लिनिकल कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी दृष्टि से संहिता क्लिनिकल ही है। देखिए, उसका कारण ऐसा है, जहां से हमारे आयुर्वेद का प्रशिक्षण शुरू होता है फर्स्ट ईयर में, वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान एक आयुष्कामी अध्याय, इसमें ये 5.5 नंबर का श्लोक है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः। आयुर्वेद की हमारी जो पहली पहचान है ये यहाँ से होती है कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, जिनके नाम वात पित्त कफ है।
और हमें बताया जाता है कि अष्टांग हृदय एक संहिता ग्रंथ है जो नॉन क्लिनिकल है। इसकी टीका देखिए हेमाद्री ने लिखी है, आयुर्वेद रसायन नाम की हेमाद्री की टीका में इस श्लोक पर पहला वाक्य आता है, अथ व्याधि प्रतिकारम व्याचष्टे। अब मैं आपको व्याधि प्रतिकार बताऊंगा। अरे बच्चा अभी एडमिट नहीं हुआ, प्रथम वर्ष में है, उसके पहले मास के पहले हफ्ते के पहले दिन का पहला लेक्चर है, जहां पर आप उसको वात पित्त कफ बताने वाले हो, और उसकी टीका में आप लिख रहे हो व्याधि प्रतिकार बता रहे हैं। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि आयुर्वेद में लिखा हुआ हर वाक्य व्याधि प्रतिकार के लिए ही है, और व्याधि प्रतिकार का अंग्रेजी में अर्थ आप भली बात समझ सकते हैं, क्लिनिकल है। हर वाक्य क्लिनिकल है। अगर आप उस दृष्टि से देख पाओ और अगर आप उस दृष्टि से उसको प्रयोग कर पाओ, चरक संहिता जहां समाप्त होती है सिद्धि स्थान 12 में, उसमें अंतिम जो श्लोक है वो श्लोक है, इदम अखिलम अधीत्य यो विमृशति अविमना प्रयोग नित्यः। ये सारा पढ़कर समझकर जो उसका प्रयोग करेगा, उसे ये सारा जो पढ़ा हुआ संहिता का पार्ट है ये क्लिनिकल लगेगा। इसको इस तरह की वृत्ति नहीं है कि जो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, पहली बात क्योंकि संस्कृत है, पढ़ूंगा भी तो मुझे समझेगा नहीं, मैं हिंदी ट्रांसलेशन के क्रचेस लेके चलूंगा, मराठी ट्रान्सलेशनच्या कुबड्या घेऊन चालेल, त्यांना ते उपयोजनात आणतात येणार नाही। इसलिए पहली बात है कि आप अच्छी तरह से पाठ करो, अच्छी तरह से अवबोध करो, तो आपको सक्षमता आती है, वो आत्मविश्वास आता है कि यस आई कैन प्रैक्टिस आयुर्वेद, आई कैन प्रैक्टिस संहिता। ऐसे तब होता है जब आपको हर वाक्य व्याधि प्रतिकार के लिए लिखा है ऐसा लगेगा तब। सुश्रुत का जो पहला वाक्य है जहाँ सुश्रुत संहिता शुरू होती है, वहां लिखा है शारीर मानस अनंतुभिर व्याधिभिर सनातन अपि अनाथ विकृष्टमानान विक्रोशतश्च मानवान रोग उपशमार्थम। यानी सुश्रुत संहिता का पहला वाक्य आता है रोग उपशम के लिए। और जो लोकप्रिय चरक संहिता है जो हम आगे के 3 साल पढ़ते रहते हैं प्रथमार्ध उत्तरार्ध के रूप में, उसका पहला चतुष्क का नाम औषध चतुष्क है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में 7 चतुष्क है, जिसमें पहले चतुष्क का नाम औषध चतुष्क है। चरक को लगता है कि आपने चरक में एंट्री की तो आपको पहले ही अध्याय में औषधों का परिचय होना चाहिए, इसलिए चरक के पहले अध्याय में आपको फलिनी मूलिनी षडवृक्ष पंचलवण अष्टमूत्र अष्टक्षुर मिलेंगे। आगे के अध्याय में आपको अपामार्ग तंडुलियों में 28 सेवाली मिलेगी। तीसरे अध्याय में आरोग्य अध्याय में आपको 32 लेप मिलेंगे, और चौथे अध्याय में आपको 500 कषाय मिलेंगे। चलो 500 नहीं 50 कषाय मिलेंगे। फिर भी बहुत सारी औषधियों का परिचय पहले 4 अध्याय में होता है। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि संहिताकारों ने उनकी संहिता लिखते समय क्लिनिकल ही लिखी है। ये बीएमएस का सिलेबस है जिसने संहिता को नॉन क्लिनिकल नाम का टीका लगा के रखा है। इसलिए पहले विश्वास रखिए कि सारी संहिताएं क्लिनिकल ही है। क्लिनिक के ऑफकोर्स 3 पार्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक। डायग्नोस्टिक के 2 पार्ट होते हैं, कॉज एंड सिम्टम, है ना। तो हेतु लिंग और औषध यह त्रिस्कंध अर्थात क्लिनिक, इसी को चरक संहिता में हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ रहने के हेतु, स्वस्थ होने के लक्षण और स्वस्थ रहने के लिए उपाय, वैसे ही रोग के हेतु, रोग के लक्षण, रोग निवारण के उपाय, यह है त्रिसूत्रात्मक आयुर्वेद, दैट इज त्रिस्कंधात्मक आयुर्वेद, दैट इज हेतुलिंग औषधम। अष्टांग संग्रह में भी यही लिखा है, हेतुलिंग औषध स्कंध त्रय मात्र निबंधन। ये अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय वाग्भट ने लिखा है, ये केवल हेतु, लिंग और औषध इन 3 स्कंधों का ही विवरण करता है। और जो ग्रंथ इन 3 चीजों का ही विवरण करता है वो क्लिनिकल ही होता है, वो नॉन क्लिनिकल कैसे हो सकता है। संहिता द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऐसा विषय देने का मतलब है कि आप स्वीटनेस ऑफ द शुगर ये बताओ, लाइट ऑफ द सन ये बताओ। अरे संहिता मतलब क्लिनिक ही है। मैं आपको शक्कर का मीठापन क्या बताऊं, मैं आपको सूरज की रोशनी का क्या वर्णन करूं। वैसे ही संहिताओं की क्लिनिकल होने का मुझे कुछ विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं लगती है। फिर ये संशय क्यों आता है कि संहिताएं क्लिनिकल है क्या, संहिताओं का कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन होता है क्या। हमारे गुरुजी जिनका मैंने अभी नामस्मरण किया, अनिल पाल से कहा करता था कि चिकित्सित ज्योतिष मंत्र मादा पदे पदे प्रत्यमाहवंती, पद पद का पद पद पर प्रत्यय आना चाहिए। पद का अर्थ होता है शब्द और पद का अर्थ होता है कलम।
जिंदगी के हर कदम पर आपको आयुर्वेद के हर शब्द का प्रत्यय आना चाहिए. तुम्हाला आयुर्वेदाची कावीळ झाली पाहिजे, आपको आयुर्वेद का जॉन्डिस हो जाना चाहिए, तब आपको हर चीज आयुर्वेद की दृष्टि से दिखाई देगी. जैसे जॉन्डिस के आदमी को सारा पीला दिखाई देता है, वैसा अगर आपने आयुर्वेद की दृष्टि पहन ली तो आपको सारा जगत आयुर्वेद में दिखाई देगा. केवल क्लिनिक की क्या बात करते हो, पूरा जगत आयुर्वेद में दिखाई देता है. आपको आश्चर्य लगेगा कि उस समय हम लोगों को गालियां देते थे, वो भी आयुर्वेद की भाषा में देते थे. हम कहते थे किसी को अरे इसको है ना 300 बल्लातकों का बस्ती देना चाहिए. इतना आयुर्वेद जो है मुख में, वाणी में, कृति में, विचार में समरस हो गया था. अगर उस तरह से सोचेंगे, आयुर्वेद इज नॉट प्रोफेशन, आयुर्वेद इज पैशन. आयुर्वेद हमारा करियर नहीं है, आयुर्वेद हमारा जीवन है. उस पैशन तक, उस जीवन तक आप चले जाओगे तो आपको संहिता क्या, आपका हर कण कण, आपका हर क्षण क्षण क्लिनिक ही लगेगा. लोगों को लगता है कि संहिता कहते ही 100 से ज्यादा श्लोक यहाँ पर पटके जाएंगे, हजारों रेफरेंस यहाँ पर डाले जाएंगे और पूरे हमारे दिमाग का दही बनाया जाएगा, पूरे हमारे ब्रेन को प्रेशर कुकर में रख के पकाएंगे, है ना. संहिता कहते लोगों को लगता है कि संस्कृत श्लोकों की बौछार होने वाली. ये श्लोक है जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के पहले अध्याय में शायद 10वें 12वें नंबर पर आता है, जो आपको पता है कि पहले 3 रस वात को कम करते हैं, अंतिम 3 रस कफ को कम करते हैं, कषाय पित्त को कम करते हैं और रेसिप्रोकली वो उन दोषों को बढ़ाते हैं जो बाकी के रह गए. आप थक हार कर धूप में चलकर बहुत सारा कष्ट करके, बहुत सारा दिन भर काम करके घर में पहुंचे हो 5 साढ़े 5 बजे, आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो और ऐसी स्थिति में आपकी माता ने, आपकी बहन ने, आपकी बीवी ने, जो भी आपके घर में है गृहिणी के रूप में, उन्होंने आपको एक ठंडे गिलास में थोड़ा सा नींबू निचोड़कर, थोड़ी सी शक्कर डालकर, 2 पिंच लवण डालकर, नमक डालकर उसको घोल कर दे दिया और आपने उसको पीते ही बोला आह व्हाट रिलीफ, कितना अच्छा लगा. दैट इज तत्राज्ञा भारतम ग्रंथि. आप थक हार कर आए हो, आपको वात प्रकोप हुआ है, प्रत्यम शीते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते, ऐसे आपकी स्थिति है और ऐसी स्थिति में आपको किसी ने शरबत ला के दिया नींबू का तो आपको अच्छा लगता है. दैट इज क्लिनिकल आयुर्वेद. यहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है. आपके कण कण में, आपके हर क्षण में आयुर्वेद है, अगर आप वैसा देख पाएंगे तो मुझे इस विषय पर यहाँ पर क्यों बुलाया कि आप संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन बताओ. यानी क्या हमारे मन में संशय है कि क्या संहिता का भी कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन होता है? ऐसे हमारे अगर मन में संशय है तो हम उसका उत्तर जानने के लिए इस व्याख्यान को सुनना चाहते हैं. उसका दूसरा एक कारण है कि मैं जो प्रैक्टिस करता हूं, मैं वो संहिता के त्रिस्कंधों की प्रैक्टिस करता हूं. मैं जो भी हेतु सीखा हूं पेशेंट्स के, मैं जो भी पेशेंट को चेक करने के लिए लक्षण सीखा हूं, जो भी हेतु स्कंद, लक्षण स्कंद मैंने सीखा है वो मैंने संहिताओं से पढ़ा. संहिताओं के परे आपको किसी ग्रंथ में हेतु स्कंद, लक्षण स्कंद, निदान स्थान का वर्णन ही उपलब्ध नहीं. बाकी आपको योग संग्रह बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उन योग संग्रहों में आपको हेतु और लक्षण नहीं मिलते. इसलिए मेरी ये मानना है कि अगर जिस ग्रंथ से मैं हेतु स्कंद पढ़ा हूं, जिस ग्रंथ से मैं लक्षण स्कंद पढ़ा हूं, जिस ग्रंथ से मैं निदान समझा हूं, उसी ग्रंथ में वर्णित चिकित्सा स्कंद से, उसी ग्रंथ में वर्णित औषध स्कंद से मुझे वो पेशेंट ठीक करने को आना चाहिए कि जिसके हेतु लक्षण मैंने संहिता से पढ़े हैं. क्या आपके पास कोई ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें संहिता के परे का ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें हेतु लक्षण भी है और चिकित्सा स्कंद भी है? आपके पास ऐसे बहुत सारे योग संग्रह है जिसमें औषधियों की तो भरमार है. ज्वरे अमुक कल्पाहा, रक्तपित्ते तमुक कल्पाहा, राजयक्ष्मी अमुक कल्पाहा, किंतु उसका निदान और लक्षण लिखा ही नहीं. तो मेरा ये सामान्य व्यवहार है कि मैं जिस पुस्तक से, जिस ग्रंथ से, जिस संहिता से हेतु और लक्षण पढ़ा हूं, वही के चिकित्सा स्कंद का, वही के औषध स्कंद का, वही के सूत्रों का, वही के तत्वों का, उसी सिद्धांतों का उपयोजन सक्षम रूप से करके, किसी अन्य शास्त्र के औषधियों का प्रयोग न करके, मेरे शास्त्र में क्या ऐसी औषधियां है कि जो आपने सारी यूज कर ली और आपको पता चला इनका कोई उपयोग नहीं है, इनकी कोई कार्योक्ता नहीं है, इसलिए मैं किसी अन्य शास्त्र की औषधियों को शरण जाना चाहता हूँ. चरक पर 2 घंटा लेक्चर सुनने का, ज्वर निदान का, और चिकित्सा में क्या देते हैं आपको पता है? ऐसे व्यवहार में नहीं करता.
मैं इसलिए यहाँ पर हूँ संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन बताने के लिए, क्योंकि मैं संहिता से हेतु स्कंद पढ़ता हूँ, संहिता से लक्षण स्कंद पढ़ता हूँ और संहिता से ही औषध स्कंद चयन करता हूँ, संहिता की ही चिकित्सा स्कंद से पेशेंट को ठीक करता हूँ। आज नहीं, कल नहीं, 2-3 साल की नहीं, 23 साल मेरी पूरी प्रैक्टिस में मैंने संहिता के अलावा किसी अन्य कल्प का प्रयोग नहीं किया है। आई हैव नेवर यूज्ड रसकल्प इन लास्ट 23 years ऑफ माय प्रैक्टिस बिकॉज फॉर माय पर्सनल ओपिनियन। ये किसी पर थोपने की मुझे आवश्यकता नहीं, ये मेरा वैयक्तिक आकलन है, ये मेरा वैयक्तिक कंसिडरेशन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी स्वयं की धारणा है कि रसशास्त्र इज नॉट अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, हेंस आई डोंट यूज। एक फाउंडेशन के साथ जहां से हेतु स्कंद पढ़ना है, जहां से लक्षण स्कंद पढ़ना है, उसी के चिकित्सा स्कंद से, उसी के औषध स्कंद से मुझे पेशेंट को ठीक करने को आना चाहिए, इस आत्मविश्वास के लिए, इस प्रवृत्ति के लिए और उन उदाहरणों के लिए मैं आपके सामने। अगर हम क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने सिद्धांतों में, संधि में, कारक में, विभक्ति में, व्याकरण में, श्लोकों में, पाठांतर में, उच्चारण में जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। We should directly switch to clinical cases and here are the cases. ये पहली केस है। ऐसी केस हर एक के जीवन में नहीं आती और आती भी है तो बार बार नहीं आती। These are not frequent presentations in your clinic. These are unique. These are rare. These are once in a lifetime. ये 2 केसेस थे छोटे छोटे बच्चों के और ये दोनों के दोनों केसेस 24 घंटे में एक भी रसकल्प की यूज के बिना, एक भी भस्म की यूज के बिना ठीक हुए हैं, जिनकी आज की उम्र 21 साल और 6 साल है क्रमशः। देखिए क्या केस है। प्रीमैच्योर डिलीवरी एट 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 6.5वें महीने में ये डिलीवरी हुई। बच्चे का बच्चे का उस दिन का वय था 18 दिन, 18 डेज। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो चुका था, LBW था, लो बर्थ वेट था, 980 ग्राम्स ओनली। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एब्डोमिनल एक्सटेंशन 28 सेंटीमीटर था। बच्चा ऑफकोर्स ऑक्सीजन पे था, 12 लीटर का ऑक्सीजन लगा हुआ था। पहले 18 दिनों में स्टूल पास नहीं हुई थी क्योंकि माता को दूध आने की कोई संभावना नहीं। 6.5 महीने कहाँ से लैक्टेशन होगा। और ये केस रात के 1:30 बजे आई थी, 1:30 AM नॉट 1:30 PM, 1:30 AM इसके को ट्रीट किया। इसको दवाई दी 2:30 AM को और 6:30 AM यानी 4 घंटे में ये बच्चा सारे कॉम्प्लिकेशन से बाहर आके नॉर्मल हो गया विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट। इसकी ट्रीटमेंट कैसे की गई ये बताना, ये संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन। ये आगे की केस देखिए, थोड़ी सी और टीडियस है। बेबी फीमेल थी, छोटी बच्ची थी, 1 दिन की उम्र, 24 घंटे हो गए थे और पूरा लंग जो है वो मेकोनियम एस्पिरेशन के कारण भरा हुआ था। लेफ्ट लंग पूरा भरा हुआ था, राइट लंग हाफ भरा हुआ था। पूरे के पूरे एक्सरे ओपेक थे। वेंटिलेटर पे थी ऑफकोर्स और जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा थे। ऐसी स्थिति में देखा पूरा का पूरा उसका ऑक्सीडेशन तो पूरा भरा हुआ था, कहीं पर भी एयर एंट्री नाम की चीज नहीं थी। He was about to die। उसके न्यूरोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा जी, और उसने ये भी बोला कि आपको मैं दवा देने नहीं दूंगा, यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनी इंटरनल मेडिसिन, मैं आपको कुछ उसको चटाने नहीं दूंगा। और आयुर्वेद में इंजेक्शन की बात है नहीं, कहाँ से दवा देंगे उसको। तो उसको केवल बाह्य प्रयोग से, लेप चिकित्सा से ठीक किया गया, ओनली लेप। 4 औषधियों के लेप से संहिता के अंतिम 3 रस कफ को नष्ट करते हैं। इन 8 अक्षरों के सिद्धांत पर ये बच्ची ठीक हुई। इसको 18 लेप लगाए 36 घंटे में, हर 2 घंटे में एक लेप लगाया, उसको सूखने पर दूसरा लगाया। ऐसे 18 लेपों में ये बच्ची ठीक हुई विदाउट एनी रेस्पिरेशन। कैसे ठीक हुई? देखिए, पहला जो बच्चा है उसके इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो चुका है, उसको डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। उसको जन्म से लेकर आज तक मातृ दुग्ध का प्राशन करने का कोई अवसर नहीं मिला है, उसकी स्टूल्स पास नहीं हुए, तो उसको अन्न ही नहीं मिला है, तो उसके शरीर में वात प्रकोप होगा ही। शांत्यग्नो म्रियते और वेति निरिंधनो अग्नि, ईंधन नहीं मिला तो अग्नि धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये धीरे धीरे अग्नि कम होते होते शांत्यग्नो म्रियते की ओर केस जा रही। वहां पर अंदर अन्न ही नहीं है तो पृथ्वी नाम का भाव वहां पर नहीं है।
तो आकाश वायु का नाम वहां पर हो गया। नीचे से मल प्रवर्तन नहीं है इसलिए उदावर्त है, इसलिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। अन्न नहीं है इसलिए बलवर्ण नहीं है, इसलिए उसके उदार में कोई ताकत नहीं कि वो तो श्वास को खींच सके, इसलिए ऑक्सीजन दे दिया गया है उसे। सेप्टिसिया में है, और जिस आशय में उस आशय का भाव अनुपस्थित होता है उस आशय में ब्लीडिंग होता है। इसलिए आप देखिए मूत्रक्षय में क्या लिखा है कि सरक्तम श्रावयत मूत्र। शुक्र के क्षय में क्या लिखा है, शुक्रम शोणितम एवं, रक्त की प्रवृत्ति होती है। उस आशय में उसका निर्धारित निश्चित भाव अगर उपस्थित नहीं है, उस भाव की अनुपस्थिति है, तो दीर्घ काल के बाद उस आशय में रक्त प्रवर्तन होता है। और यहाँ पर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो चुका है, देखिए 18 दिन से ऊपर से अन्न आया ही नहीं है। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ये सारी स्थिति देखने के बाद तो बहुत डर लगा था कि मैं क्या दिख रहा हूँ ये। और एनआईसीयू का अनुभव नहीं था, थोड़ा बहुत आईसीयू का अनुभव था, न्यूनरल आईसीयू तो कभी दिखाई नहीं। लेकिन ये सारे लक्षण देखने के बाद इमीडिएटली ध्यान में आया कि अरे ये तो एक श्लोक में लिखे हुए हैं सारे लक्षण। ये क्या लिखा हुआ है, ग्रहणीय दीपनम श्रेष्ठम मूढ़ वातानुलोमनम बालस्य सर्वरोगेषु पूजितम बलवर्णदम। यहाँ पर मूढ़ वात का अनुलोमन होना चाहिए, ग्रहणी का दीपन होना चाहिए, बल आना चाहिए, वर्ण आना चाहिए, और एक सारा एक ही श्लोक में है। और ये जिस श्लोक में फलश्रुति थी उसके ऊपर के द्रव्य मेरे क्लिनिक में करीब करीब थे। रजनी दारु सरल श्रेयसी भवति द्वयम कृष्ण परिणिशता उवाच तच्चूर्णम मधु सर्पिष्ठम। इस तरह से ये काम हमने उस वक्त किया। और 4.5 घंटे के बाद जब ये उसको दिया गया तो 4.5 घंटे के बाद ये जो बच्चा है ये फिर से उसके स्टूल पास हो गए, उसका इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बंद हो गया, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन चला गया एंड ही सर्वाइव। आगे एनआईसीयू में उसको फिर भी 2.5 महीना रखना पड़ा और 2500 ग्राम वेट होने के बाद वो वहां से डिस्चार्ज हो गया। इस घटना को 21 साल हो गए। देयर इज नो डिलेड माइलस्टोन, वेरी वेल डेवलपमेंट, नो प्रॉब्लम। दूसरी जो बेटी है जिसका पूरा का पूरा लंग भरा हुआ है, इसको क्या समझेंगे, पुरुष स्थान है। पुरुष स्थान जो है कफ का स्थान है, फुफ्फुस जो है वो कफ का स्थान है, अवलंब कफ का स्थान है ज्यादा से ज्यादा। और वहां पर भरा हुआ क्या है, गर्भोदक भरा हुआ है। गर्भोदक क्या है, रसजन्य कोई पदार्थ है, रसजन्य जल सदृश कफ सदृश रसोपि श्लेष्मवत्। तो हमें कफ के सद्भाव को वहां से हटाना है, जल को वहां से हटाना। तो जल को, कफ को, रस को, स्तन्य को, इनको हटाने का काम कौन करेगा, जो कफ के विपरीत है, त्रयस्तिक्ता कफम, ऐसी चीजें करेंगे। बालक रोग में सर्वकाल तेरे पर धारण करने योग्य द्रव्य कौन सा है, वचा है, धारे सततम वचा। अभी जो चूर्ण बोला वो कौन सा चूर्ण है, रजनी आदि चूर्ण है, रजनी। तो रजनी, वचा और तिक्त उष्ण रस चाहिए क्योंकि कफ पर काम करना है, तिक्त कटु रस चाहिए। इसलिए कटु रसों में जो सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है पिप्पली और श्रृंखी, ऐसे 4 द्रव्यों के लेप उसके छाती पर, पीठ पर, पार्श्व पर लगाए। 18 लेपों के बाद बोथ द एक्सरेज ऑफ लंग वेर क्लियर, बेबी सर्वाइव। और आज वो बच्ची 6 साल की। बहुत कुछ बड़ा नहीं किया है, बहुत कुछ डिफिकल्ट आवरण वगैरह में जाके अमुक गत वात तमुक गत ऐसा कुछ नहीं किया है। वाग्भट के पहले अध्याय के 10वें 12वें श्लोक में जो लिखा है वही स्तन्य दोष निवर्हण, ये वचाहरिद्रादिगण की फलश्रुति है। गर्भोदक रस से निर्माण होता है, स्तन्य भी रस से निर्माण होता है, एक सदृश भाव है वो दोनों के दोनों। जो गर्भ की अवलंबन करता है वो गर्भोदक, और जीव के रूप में बाहर आने पर शिशु का अवलंबन करता है वो स्तन्य, वो एक ही भाव है, रसजन्य है। इसलिए जो स्तन्य दोष को निवारण करेगा वही गर्भोदक के प्राशन के दोष को निवारण करेगा। ऐसा कंसिडर करके स्तन्य दोष निवारण के रूप में वचा हरिद्रादिगण का प्रयोग। वचा कंद है, हरिद्रा कंद है, शुंठी कंद है, मुस्ता कंद है, और जितने कंद हैं ये सारे अच्युग्र वीर्य होते हैं, तीक्ष्ण वीर्य होते हैं, बहुत जल्दी कार्मुक होते हैं। इसलिए आप देखिए सुश्रुत उपस्थान 2 में स्थावर विषयों में 10 प्रकार लिखे और उसमें लिखा है कंदा जाने अति उग्राणी उग्र विषाणी कंद वीर्याणि। कंद विषाणी कंद जो होते हैं ये अत्यंत उग्र वीर्य होते हैं, तीव्र वीर्य होते हैं, तीक्ष्ण वीर्य होते हैं, तीव्र कार्मुक होते हैं, क्षिप्रम आरोग्यदायित्व इनमें होता है।
इसलिए वहां पर वचा का, हरिद्रा का और शुंठी का जो तीनों कंद है उनका प्रयोग किया गया। और टिप्पणी जो कतुरस में सर्वश्रेष्ठ है, तिक्तों कतुजभूषितम अवृष्टम वातकोपनम कृते अमृतापतोदिभ्यम शुंठी कृष्ण रसोनता भागवत सूत्र संलग्न का ये श्लोक। मैं आपको चिकित्सा स्थान की बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सूत्र स्थान की बातें बता रहा हूँ। ये लेप लगाने के बाद इंटरनल मेडिसिन दिए बिना ये लड़की बाहर है। हेलो लेकिन ऐसे केसेस थोड़ी बार बार आते हैं। ये जो सर, मैंने सॉरी आपको टू बताया, डिस्टर्ब। हेलो सर, डॉक्टर अमित चव्हाण बोलतोय. बोला ना, सर, बोला ना, पीपीटी दिसत नाहीये. पीपीटी दिसत नाहीये सर. बघा आता, बरं आता दिसते का बघा, एक मिनिट हा. हा, आवाज येतोय सर, पीपीटी दिसत नाहीये फक्त. एक मिनिट. आता दिसते? हा सर, हा आता दिसते. ओके. तो बार बार थोड़ी ऐसे केसेस आते हैं इमरजेंसी वाले, इतने रेयर कि कोई एक छोटे बच्चे को ट्रीट करो करके नहीं। हम तो सामान्य क्लिनिक चलाते हैं, सामान्य ओपीडी चलाते हैं। वहां पर जो आजकल के पेशेंट है वो आते हैं ना, HRCT स्कोर इतना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अभी देखिए HRCT स्कोर कितना है, ये थोड़ा सा मैंने एनलार्ज किया। टोटल HRCT सीवियरिटी स्कोर इज 25/25। 12 दिन तो ऑक्सीजन चालू था और 18 दिन से एडमिट थे और सारा देके हो चुका था, कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए घर भेज दिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, आपके पास पैसे भी नहीं, चले जाओ, अगला पेशेंट एडमिट करना है। मैं इसको होम विजिट करने के लिए गया, 12 लीटर का ऑक्सीजन चालू था। 2 सेकंड के लिए ऑक्सीजन का मास्क हटाया तो सैचुरेशन 85 पे आ गया। ऐसी भयानक स्थिति। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ये रोजमर्रा के केस, वो तो छोड़ दीजिए, मेकेनियम में एस्पिरेशन हो गया या फिर मैचुरल डिलीवरी हो गई, छोड़ दीजिए, ये तो रोज की बात है। इसमें क्या करेगी संहिता? इसमें तो कैसे पूर्ण कल्प चाहिए, तीक्ष्ण कल्प चाहिए, चित्रम आरोग्य दायित्व चाहिए, ऐसे कल्प चाहिए ना। इसको क्या दिया? वही दिया, अंडरस्टैंडिंग वही है ना। क्या स्थान है मुझे बताओ, ये जो आप HRCT का स्कोर पढ़ रहे, इसका स्थान क्या है? उर है। दोष कौन सा होता है उर में? सुतराम उरहा कफस्थ स्थान है, कफ है। कफ ने किसका अवरोध किया है? वातों का अवरोध किया है। यत्किंचित कफ वातगनम उष्णम वातानुलोमनम, ये इसकी चिकित्सा लिखी है। तो आपको वातहर, कफहर, उष्ण ऐसी चीजें उसको देनी है। तो अभी जो बोला वही देना है ना। स्थान बदला नहीं, दोष बदला नहीं, केवल क्लिनिकल कंडीशन बदली है, पेशेंट का वय बदला है, तो मात्रा बदल जाएगी और क्या हो। जो 36 घंटे में 18 लेप लगाए उसकी बजाय मुहुर्मुहु देना पड़ेगा, है ना। तो वही द्रव्य, वही वचा हरिद्रादि गण, वही कंदात्मक द्रव्य वचा, शुंठी, मुष्टा, पिप्पली, वही दिया उसको। लेप के लिए भी दिया, मुहुर्मुहु के लिए भी दिया, नस्य के लिए भी दिया, सिद्ध जल के लिए भी दिया, क्षीरपाक के लिए भी दिया, और उसके साथ कुष्मांड रसायन दिया। इसकी फलश्रुति में लिखा है उरसंधान कृत, उर का संधान करने वाला। देखिए संहिता में जो लिखा है वो करो, क्यों अपना दिमाग लगाते हो? आपको दिमाग लगाने के लिए किसने बोला? अमीमांस्यानि मंत्रोत्सम प्रयोक्तव्यम, मंत्रोत्सम प्रयोक्तव्यम न मीमांसम कथंचन। आपकी माथा कच्ची मत करो, आपके ब्रेन को तकलीफ मत दो, आपके ब्रेन को इतना ही ट्रेन करो कि जो शास्त्र में लिखा है उसकी प्रचिति ले लो, पदे पदे प्रत्ययमावंती और संधान कृत। ये कुष्मांड का वर्णन है और कुष्मांड दे दिया। और आगे क्या हुआ? आगे फिर उस बच्चे ने ये लिख के भेजा, ये पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस ट्रीटमेंट, उनका सैचुरेशन ऐसे ऐसे होता है, रोज कामावर जाता है, कंपनी में जाकर काम दिला। क्लास 3 में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनके पास कितना पैसा होगा, कितने दिन सस्टेन करेंगे बिना काम के? काम पे जाने लगे, काम पे जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, उत्साह चाहिए, बल चाहिए, उड़ान में ताकत चाहिए। उड़स्थान उड़ान, उस उड़ पर काम करो, उस उड़ान को बल दे दो। ये बहुत सारा, तो बहुत महारथकल्पों को यूज करना है। उसी वचा को, उसी संति को, उसी अभया को, उसी पिप्पली को, उसी हरिद्रा को, उसी के साथ भावनाएं दे तो भूयश्चैषां बलाधानं कार्यम स्वरस भावनैः स्वरसैः तुल्य वीर्यैर्वा तस्मात् द्रव्याणि भावयेत् स्वभावितम् अल्पमपि द्रव्यं स्यात् बहुकर्म कृतम्। भूयश्चैषां, भूयश्च बार बार इनको स्वरस भावना दीजिए, उसी की भावना दीजिए, नहीं तो तुल्य वीर्यैः वा भावयेत्, उन्हीं के समान वीर्य वाले द्रव्यों की भावना दीजिए। मैंने
हरी मिर्ची की भावना देके टैबलेट बन रहे हैं। हरी मिर्ची आई है संहिता में? नहीं। तुल्य वीर्य ही वह भाव है, उसके समान वीर्य वाले, उसमें तीक्ष्ण वीर्य वाले द्रव्यों की भावना दी है। कटुरस का काम क्या है? छिन्नति बंधन स्रोतों से विवरण होती। भगवत सूत्र सांदर। मैं आपको चिकित्सा स्थान में घुमाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको कल्प सिद्धि के जंगल में नहीं ले जा रहा हूँ। आई एम स्टिल सूत्र स्थान अध्याय 1, 10, 15 कटुरस का काम लिखा है बंधन छिन्नति विवृणोति स्रोतों स्रोतों को बड़ा करता है, विवृत करता है। यहाँ पर स्रोतस क्लॉग हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, उनको हमें काम देना है, उनको हमें विवृत करना है। विवरण सूक्ष्म सूक्ष्म गुण का, कटुरस का, उष्ण गुण का, तिक्त कटुरस का द्रव्य चाहिए। जो वचा है, शुंठी है, हरिद्रा है, पिप्पली है, वचा हरिद्रादि गण है, उसी गण को, उसी गण की 7 भावनाएं देकर मैं टैबलेट यूज करता हूँ। अल्पमात्रोपयोगित्वात्, क्षिप्रमारोग्य दायित्वात्, अरुचेर प्रसन्नता सप्तधा भावितावती। मैं श्लोक बदलता हूँ, औषधिभ्यो धिको रसा नहीं। क्षिप्रमारोग्य दायित्वात्, अल्पमात्रोपयोगित्वात्, अरुचेर प्रसन्नता सप्तधा भावितावती। वटी देता हूँ, अंदाज पंची चूर्ण टाकत नाही पुडीमध्ये, चमचा उलटा करून बाटलीत मी चूर्ण टाकत नाही, याच्यात 125 पडलं, त्याच्यात 250 पडलं, नो। मात्रा होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। आपने क्या दिया पता होना चाहिए। वाग्भट लिखता है प्रायः कृत्य हो रात रात कर्मान्यतपि भीषजम, एक रात्रि में काम होना चाहिए पेशेंट का। क्यों पेशेंट को बोलते हो कि आयुर्वेद के लिए टाइम लगेगा, आयुर्वेद बहुत देर से काम करता है? नहीं करता है, एक रात्रि में काम होना चाहिए। रात को 11:15 बजे मेरे स्टूडेंट का फोन आया, सर 85 के नीचे सैचुरेशन जा चुका है, रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लग चुके हैं, अभी डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हो सकता, अभी क्या करेंगे? उसको फोन पर बोला ये दे दे मुहुर्मुहु। सुबह 5 बजे उसका फोन आया, आई वॉज ऑन द हाईवे फ्रॉम नासिक टू पुणे ड्राइविंग माई कार फॉर माई पुणे प्रैक्टिस ऑन द संडे की सुबह 5 बजे उसका कॉल आया, सर आजी सगळ्यातनं बाहेर आली, 95 वरती सैचुरेशन है, दादी जो है बाहर आ गई, 95 के ऊपर सैचुरेशन जा चुका है। मैंने बोला वही चालू रखा आगे के 3 दिन। ट्राई करो हो रात रात कर्मण्य वाग्भट का आपको जो आशीर्वाद है, वाग्भट झूठ नहीं बोलता है। वाग्भट लिखता है दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः, पाठ अवबोध अनुष्ठान ही अधिगच्छति अतो ध्रुवम। ध्रुवम लिखा है वाग्भट में। वाग्भट जैसा शब्दों में जो कंजूस है, बहुत बहुत कम शब्द यूज करता है। जहां 13 वेगों को लिखने के लिए चरक को 4 लाइन लगी है, वहां वाग्भट ने 2 लाइन में 13 वेग लिखे। 6 रसों के 2-2 महाभूतों के नाम, यानी 12 महाभूतों के नाम उसमें 16 अक्षरों में बताया है। जिस पंक्ति का विस्तार 18 लाइन तक हो सकता है, ऐसी एक पंक्ति उसने लिखी, वही हो रात्रि भुक्ता नाम दिगाक्रम। इतना कंजूस वाग्भट जो शब्दों के बारे में बहुत स्पेसिफिक प्रिसाइज एंड कंसाइज है, वो वाग्भट लिखता है कि अधिगच्छति अतो ध्रुवम, आपको निश्चित रूप से सारा मिलेगा अगर आप पाठ अवबोध और अनुष्ठान करो। और ये अनुष्ठान सूत्र स्थान से लेके करना है। ऐसे नहीं कि सारी औषधियां चिकित्सा स्थान में मिलेगी, नहीं मिलती है। मेरी दृष्टि से थोड़ा सा बंडखोर स्टेटमेंट है ये, थोड़ा सा रिबेल है, थोड़ा सा साहसी स्टेटमेंट है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सभी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट की चिकित्सा स्थान ये आउटडेटेड है। क्या बात कर रहे हैं? संहिता के विद्यार्थी होकर ऐसे बात करते हो? आपको कुछ नहीं लगता है? ऐसे दृष्टतापूर्ण वाक्य बोलते हो? ये तो पाप कर रहे हैं आप, ये असत्य वचन है, ऐसा क्रिटिसाइज किया जा सकता है। देखिए 9वीं शती में वाग्भट लिखा गया है, आउटडेटेड नहीं है। आपको मैं बोलूं कि वो फोन ले लो क्रेडल वाला, टर टर टर, वो यूज करो, करोगे? नहीं करोगे। आपको मैं बोलूं कि 3310 नोकिया यूज करो, बटन वाला, 12 बटन वाला, करोगे? नहीं करोगे। आपको मैं बोलूं 2 GB रैम का फोन यूज करो, नहीं करोगे। आपको अभी 6 GB रैम का, 8 GB रैम का फोन चाहिए। तो आपको एरर कैसे चलता है ऐसे नॉन अपडेटेड 900 AD का? वो चिकित्सा स्थान उस समय जो लिखा गया वो उनके जमाने के हेतु लक्षण के लिए था, उनके जमाने के आहार विहार के लिए था। उनके जमाने का आहार विहार आज है बाकी नहीं। अगर उनके जमाने का आहार विहार बदल चुका है तो उनके जमाने का तज्जन्य लक्षण स्कंद कैसे रहेगा? और अगर उनके जमाने के हेतु स्कंद लक्षण स्कंद नहीं है तो उनके जमाने का औषध स्कंद आप कैसे यूज करते हो? औषध स्कंद तो सूत्र सार में ढूंढना चाहिए, औषध स्कंद चिकित्सा सार में है ही नहीं। आपको प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति बहुत आदर है, जय श्री राम। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदनीय लगते हैं,
जय शिवाजी, जय भवानी। अच्छा ठीक है, रामचंद्र जी ने राक्षसों का निर्धारण किया, वो किससे किया? बाण से किया, बाण से, एरो। शिवाजी महाराज मुगलों से लड़े, किससे लड़े? तलवार से लड़े, तलवार से। आप आज के शत्रुओं से किससे लड़ोगे? आपको श्री राम के प्रति, शिवाजी के प्रति बहुत आदर है, तो क्या आज के शत्रुओं से आप तलवार से और बाण से लड़ोगे? नहीं, आज आप गन से लड़ोगे, बम से लड़ोगे। जैसे हेतु लक्षण बदल जाएंगे, वैसे आपका औषध बदलना चाहिए, बदलता भी है। तो आपको आज के हेतुओं के लिए, आज के आहार विहार के लिए, तज्जन्य आज के लक्षणों के लिए, आज के मैनिफेस्टेशन के लिए, आज की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के लिए आज का स्कंद आपको लिखना है, जो मिलेगा आपको सूत्र स्थान 15 में, जो आपको दोष रस गुण महाभूत की दृष्टि से डिजाइन करना है नए रूप से, तो वो पेशेंट आप टैकल कर पाओ। आप उन्हीं बाणों से, उन्हीं तलवारों से लड़ना चाहोगे तो आपको देर लगेगी, आपको टाइम लगेगा। फिर आप बोलोगे कि आयरे से टाइम लगता है। आयरे से टाइम नहीं लगता है, आप गलत शस्त्र यूज कर रहे हो। आपको पानी पे चलना है और आप कार लेके जा रहे हो, आपको रास्ते पर से चलना है और आप रेलवे दौड़ा रहे हो, आपको हवा में उड़ना है और आप जहाज में बैठे हो, नहीं होता है। इसलिए ये जो रोजमर्रा की बातें हैं कि 25/25 ये स्कोर है, देखा आपने, ये HRCT स्कोर 20, ऐसे एक केस नहीं, ऐसे अनेकों केसेस हुए, रोज होते हैं। तो ये जो फीडबॅक आता है, ये फीडबॅक हमें रोज चाहिए। हमें पेशंटला नुसतं बरं करायचं नाही, पेशंटला बरं वाटतं कामा नये, पेशंट बरा होता कामा नये, पेशंट बरा राहिला पाहिजे। पेशंट केवल ठीक, पेशंट को ठीक लगना नहीं चाहिए, पेशेंट ठीक होना नहीं चाहिए, पेशेंट ठीक रहना चाहिए। नॉट ओनली रिलीफ, नॉट ओनली क्योर, बट द नॉन रिकरेंस शुड बी द मोट्टो ऑफ आवर ट्रीटमेंट। फिर ये नया औषध स्कंद आप कहां से लिखोगे? यहां से लिखोगे, यस्याद रस विकल्प में यच्च स्याद दोष विकल्पविद न समूहे विकारणम हेतुलिंगोपशांति। हेतु बदल गए हैं, उनका रसदोष गुण महाभूत से एनालाइज करो। लक्षण बदल गए हैं उन हेतुओं के अनुसार, उनका रसदोष गुण महाभूत के अनुसार एनालाइज करो। और वो जो भी इक्वेशन आएगा उसके ठीक विपरीत आपका औषध स्कंद बनेगा, वो भी दोष रस गुण महाभूत से बनेगा। ऐसे इसको 3 दोषों का 6 रसों के साथ, 5 महाभूतों के साथ, 20 गुणों के साथ परस्पर संबंध क्या है, मैट्रिक्स क्या है, फंडामेंट क्या है, नेटवर्क क्या है, एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशन क्या है, जिसको पता है भली बात है, एग्जाम्पल्स के साथ, तात्विक रूप से नहीं। उसको नया हेतु स्कंद, नया लक्षण स्कंद जो आज है, जो संहिता में लिखा हुआ नहीं, पोल्यूशन नहीं लिखा है, पेस्टिसाइड नहीं लिखा है, हाइब्रिड नहीं लिखा है, स्ट्रेस नहीं लिखा है, शिफ्ट ड्यूटी नहीं लिखी, कुकर नहीं लिखा है, पाम ऑयल नहीं लिखा है, शेंगदाना नहीं लिखा है, साबुदाना नहीं, सॉस नहीं, मैदा नहीं, आलू नहीं, मिर्ची नहीं, चाय नहीं, जोर से प्रवास करना नहीं, हवा में उड़ना नहीं, कहाँ लिखा है? आज का बहुत सारा हेतु स्कंद संहिता में लिखा ही नहीं। और कारणानुरूपम कार्यम, कार्य कारण भाव के अनुसार जैसा हेतु वैसा लक्षण आए, तो उन हेतु लक्षणों को आप अगर इस पिरामिड के अनुसार एनालाइज कर पाओगे तो तद विपरीत औषध स्कंद आप कर पाओगे। ये बहुत ही विचित्र, मैं जब इसको देखने के लिए गया था तो स्थिति ऐसी थी कि SLR लेस देन 10 डिग्री, पाँव उठा ही नहीं पा रहे, L1 to S1 all severely degenerated age 72 years। भी क्या करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? ये तो वर्टिबुलर डिजेनरेशन है, यानी अस्थिक्षय है, अस्थिक्षय तो तिक्त क्षीर बस्ती दे दो और ठीक कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है? आप क्या बताएंगे? आपका जैसे अष्टांग सूत्र स्थान 11 या चरक सूत्र 28 का श्लोक याद है कि बस्ते क्षीर सर्पेशी तिक्त कोपहिता नीच या जाताम क्षीर घृत स्थित संयुतर बस्ती सत, वैसे मेरे भी दिमाग में है, लेकिन ये बोली कि मैं बस्ती लूंगी ही नहीं, मुझे कमर टर्न करने को नहीं आ रही है, मेरी सारी यूरिन और लैट्रिन यहाँ पर हो रही है बेड पर, मैं कहां से टर्न करूं, मुझे इतना पेन है, क्या करेंगे ऐसे? तो बस्ती दिया है। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 के अंत में औषधि काल आता है, जिसमें लिखा है अन्नादो विगुणे पानी। आपको अपान क्षेत्र में औषध देनी है तो आपको प्रागभक्त औषध देनी है, भोजन के पहले देनी है। बस्ती जाता कहाँ है? बस्ती पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय का स्वामी कौन है? पक्वाशय का स्वामी वायु है, लेकिन वायु के 5 प्रकारों में पक्वाशय से संबंधित कौन है? अपान है, और अपान का औषधि काल है प्रागभक्त।
तो वही औषधि सिद्ध क्षीर और औषधि सिद्ध दुग्ध और उसके साथ औषधि कुछ टैबलेट्स साथ भावना दी हुई उसको अपान काल में प्रागभक्त काल में भोजन पूर्व काल में दे दी और 14वें दिन ये 6 महीने से अपने बेड पर पड़ी हुई लेडी लेस देन SLR 10 डिग्री ओनली ये चलते चलते मेरे क्लिनिक में आ गई एंड 2002 ऑनवर्ड्स नाउअडेज टिल डेट पिछले 19 सालों में इन केसेस की संख्या 1600 से ऊपर है जिसमें लिगामेंट टेयर है डिस्क बल्ज है डिस्क डीजनरेशन है फिजियोलॉजिकल टेयर है ट्रॉमेटिक टेयर है ऐसे सारे केसेस और हर एक के MRI में ये कॉमनेस्ट लिखा होता है जो लो बैक पेन के लिए आते हैं लोकाइसन डीजनरेशन तो इट इज ट्रीटेबल एज पर योर नॉलेज तक क्षीर बस्ती लेकिन बस्ती क्यों देना है सो एम्बैरेसिंग ट्रीटमेंट मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर 60% 70% ज्यादा लोग IT से आते हैं IT के लोग रहते हैं IT देता वो IT में जो काम करने वाले हैं उनको ऐसे TDS ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए देगा उनको रोज बस्ती या कौन आएगा वहां से आपके यहाँ का पार्किंग ढूंढते ढूंढते आपके क्लिनिक पे और शास्त्र में लिखा है बच्चे ऐसे गए क्लिनिक में करके दौड़ते दौड़ते आएगा बस्ती दो गया और दौड़ते दौड़ते चला जाएगा रुकेगा वो बस्ती मैं शोधन के बारे में पंचकर्म प्रैक्टिस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता जो चलता है वो क्या चलता है आपको सबको पता है एक थोड़ा सा एक जोक के रूप में समझ लीजिए शोधन को लोग शोधन के रूप में देखते हैं पंचकर्म का पर्याय नाम शोधन है कुछ लोग उसको शो योर धन अब तो मेरा विषय छोड़ देता हूँ मैं पंचकर्म नहीं करता उसके कोई अन्य कारण है कभी पंचकर्म का विषय आएगा तो उसको बताने का प्रयास करेंगे तो ऐसे प्रीवियस ट्रीटमेंट थोड़े अमेरिकन ट्रीटमेंट जो जिसके लिए सारा यंत्रणा लगती है ऐसे ट्रीटमेंट में क्यों करूँ मैंने ऐसी एक योजना चलाई कि जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 का और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 का सम्मिलन है एक दोनों का कॉम्बिनेशन और वो चल पड़ा ऐसे में मैं हाइपोथेटिकली बात करता हूँ आई विल स्पीक विद केसेस एंड नॉट वन केस टू केस हंड्रेड्स ऑफ केसेस ये आगे की केस है इसका ये फोटो है डायबिटिक एज 60 इयर्स नॉन केस ऑफ डायबिटीज लेफ्ट फुट गैंग्रीन पहले से 3 फिंगर काट चुके थे अभी एंकल से काटना था इसलिए आ गए कि भाई एम्पूट करना है बचा सकते हैं क्या पहले ही 3 फिंगर काट चुके 3.5 इंच का खून था 1.5 इंच डीप था बहुत सारे डिस्चार्जेस थे होल स्मेल था भयानक तो स्टार्ट किया और 3 महीने के बाद पूरी की पूरी वो हील हो गई आप देख सकते हो ये पहला ये है और ये बात इस तरह से होता है ना व्हाट इज डायबिटीज डायबिटीज उनको क्या समझे प्रमेहजन्य व्रण समझे कि लिखा है शास्त्र में प्रमेह में व्रण होता है ऐसे लिखा है इसको प्रमेह पिटिका कहेंगे ये पिटिका है नहीं ये व्रण है ना इतना बड़ा उसको पिटिका कहां से कहेंगे तो प्रमेहजन्य व्रण शास्त्र में लिखा ही नहीं तो क्या करेंगे इसको तो इसको इस तरह से समझे डायबिटिक वोन जो है रिकरेंट और नॉन हीलिंग वोन होते हैं इसको इस तरह से करें कि व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति स्थिरस्थिति रूढ़ानामपि वृक्षत्वम निमित्तेऽल्पेऽपि कोपनम ये पुस्तक के पूर्व में लिखा है प्रमेय में नहीं लिखा पुस्तक के पूर्व में लिखा है इसका मतलब पुस्तक में भी नहीं लिखा है पुस्तक की संप्राप्ति के आरंभ में ऐसी चीजें हो सकती है प्रमेह में क्लेद जो है ये बस्ती से बाहर निकल जाता है और डायबिटीज में क्लेद जो है ये बस्ती तक पहुंचने का बाकी है हम डायबिटीज का डेफिनेशन हाइपरग्लाइसेमिया अनेबल टू यूज द शुगर ड्यू टू लैक और एब्सेंस ऑफ इंसुलिन इस तरह से करते हैं आपके पास जो रिपोर्ट आता है वो रक्तगत ग्लूकोज का आता है बस्तीगत मूत्रगत ग्लूकोज का नहीं आता है इसलिए उसको प्रमेय नहीं दे सकते गया ही नहीं अभी बस्ती तक अभी रक्त में पकड़े उसको इसलिए प्रमेय में हम रोना ढूंढेंगे तो कहां से मिलेगा आपको जाना है सोलापुर आप गाड़ी में बैठे मुंबई के तो पहुंचेंगे कभी नहीं तो व्रणानामधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिरस्थिति नॉन हीलिंग रूढ़ानाभिरुक्षत्वम निमित्ते अल्पेति कोपनम रिकरेंस ये लिखा है पुस्तक के रूप में पुस्तक हुआ नहीं अभी गाड़ी छूटी है अभी पुस्तक की संप्राप्ति की ऐसी स्थिति में ऐसे व्रण होते हैं तो ये क्लेद का सद्भाव है रक्त मांस
लसिका, इनमें विद्यमान ये क्लेद का मैनिफेस्टर है, क्लेद का आविष्करण है, क्लेद का ये सद्भाव है जो उसे इस प्रकार के नॉन लिविंग रिकरेंट वुंड में कन्वर्ट करता है। तुम्हें ट्रीटमेंट किसकी करनी है? करने की, किसकी? नहीं, क्लेद की। इसलिए वैसे ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हुआ। ऐसा भी लिखा है, सस्रावन, उग्र रुझान, धूप है, तो धूपन किया। धूपन क्या है? धूपन अग्नि वाया होता है, इसलिए उसने क्लेद नाम के, श्रावण नाम के वहां की क्लेद को, वहां की क्लीनता को, वहां के पक्ष को हटा दिया, डब्ल्यूएच को हटा दिया, प्लेग को हटा दिया। येलो येलो जो प्लेग आपको दिखाई दे रहा है इधर, उसको उसने हटा दिया। रोपण के बाद धीरे धीरे वो ड्राई हुआ। तो आगे का तो बहुत आसान था, फिर रोपण द्रव्य दे दिए और वो हो गया। ठीक, रोपण द्रव्य कौन से? कसा ही रही, कहाँ कुछ अलग बात करनी है? तत्राद्यामार्तम ग्रंथि रे शिक्षा दे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। वही बोलते हैं बार बार, कुछ नया नहीं बताते हैं। इसी भाषा में बोलेंगे, आप निदान स्थान में जाओ, चिकित्सा स्थान में जाओ, दूसरे स्थान में रहो, ये इसी भाषा में बोलते हैं। दोष रस गुण महाभूत हेतु क्या है? विदाही पटु अंग, अरे यानी क्या? यानी अग्नि। स्वास्थ्य हेतु क्या? शैत्य, वायु, धूम, अकुल, गुरु, स्निग्धा, यानी बातें कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। नया क्या बोल रहे हो आप? दोष रस गुण महाभूत के अलावा कुछ नहीं बोलते हो। और तो आनंद बख्शी की जयंती हो गई। आनंद बख्शी मालूम है आपको? पिछली पीढ़ी के गीतकार थे, लिरिसिस्ट जिसे बोला जाता है आजकल। 5,000 से ज्यादा फिल्मों के गाने लिखे उस आदमी, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी। आनंद बख्शी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मनमोहन सिंह देसाई से कि गाना लिख के लाओ 15 मिनट में। तो डर गए, 15 मिनट में गाना कहाँ से देगा? कोई भी कवि क्यों ना हो, 15 मिनट में गाना कहाँ से? तो 13 मिनट तक तो 4 चाय पी चुके थे आनंद बख्शी, नहीं हुआ। अंतिम 2 मिनट में गाना लिखा और ले गए डायरेक्टर के पास, भाई ये गाना ले लो, चला। और गाना आपको पता है, किसी गाने के अनुसार ये लोग बातें करते हैं। निदान स्थान हो, चिकित्सा स्थान हो, लक्षण स्कंद हो, चित्र स्थान हो, कल्प स्थान हो, सभी जगह लैंग्वेज ऑफ दोष रस गुण महाभूत। गाना क्या था? गाना था ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। वही दिल दीवाना, दीवाना दिल, दीवाना दिल, मत किसने यही बोलते हैं ये लोग कि अगर आपको व्रण ठीक करना है तो कसाय तिक्त दे दो, आपको क्लियर लक्ष्य करना है तो कभी तिक्त कसाय दे दो। नया क्या बोल रहे हैं? सर वही किया, और मैंने पहले आपको बताया, आई डोंट यूज एनी रेसिपी। मैंने इसमें नमक रसायन यूज नहीं किया, कितने त्रिफला यूज नहीं किया। जो सब करते हैं यार वो हम तुम क्यों करें? जो जितना वही सिकंदर पिक्चर देखा है कभी? आमिर खान की फिल्म की बहुत साल पहले आई है, उसमें गाना आता है जो सब करते हैं यार वो हम तुम क्यों करें? जो सब लोग करते हैं वही करना है। तो आपका विलक्षण क्या है? आपकी वैशिष्ट्य क्या है? आपका स्पेसिफिकेशन क्या है? आपका आउटस्टैंडिंग क्या है? They laugh at me because I am different. बहुत सारे लोग मुझको बताने करते हैं, गालियां देते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे उसकी आदत हो गई। They laugh at me because I am different and I laugh at them because they all are same. ऐसा कुछ है? हाँ मैं अलग हूँ थोड़ा सा, जो भी हो आगे। फिर ये डायबिटीज होने किसके कारण होता है? डायबिटीज के कारण। तो जब वुंड ठीक किया तो वो बोला कि यार वुंड ठीक किए हो तो डायबिटीज को भी ठीक कर दो। ये डायबिटीज को ठीक करने का शुरुआत था 2016। ये देखिए, ये है 225, 177 फास्टिंग और पीटी। ये है नॉर्मल 74 और 99 कितने दिन में? ये है अप्रैल 16 और ये है जून 16, 18 तारीख, 18 अप्रैल और 18 जून, 2 महीने में। हाँ अच्छा, शुगर तो ठीक होती है, उसमें क्या है? HbA1c ठीक होना चाहिए, तो HbA1c भी ठीक करो। HbA1c था 9.4 जो आ गया 7.4। ये है HbA1c की केस, क्योंकि HbA1c इज मोर रिलायबल। मैं आपको 3 दिन मिठाई खाने के लिए बोलूं तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। आपको मैं 3 दिन भूखा रखूं तो आपकी शुगर नीचे आ जाएगी। I can manipulate your BSL fasting. So what to do about HbA1c, which is 90 days average sugar? देखिए कितनी है? 14 और 350, 12 जनवरी, 14 जनवरी। ये है 5 महीनों के बाद 7, एग्जैक्टली 7 आधी 18/6 को। इसकी भी रिपोर्ट दिखाता हूँ बाद में। हाउ टू ट्रीट दिस। ये है अभी का रिपोर्ट, ये है
394 यानी 400 और 447 यानी 4.5। ये कहाँ तक आ गई? ये आ गई 126 और 142 कितने दिन में? एक महीने 29। और ये अल्टीमेटली लोग कहते हैं स्थूल का औषध नहीं होता है, नहीं स्थूल से विपरीतम, ऐसे मेरे मेरे प्रिय वाग्भट का कहना है। आई एम माइस विद वाग्भट, आई एम ऑब्सेस्ड विद वाग्भट। मेरी जिंदगी जो भी चलती है वाग्भट से चलती है। मेरे लिए वाग्भट एक सब्जेक्ट नहीं है। अष्टांगहृदय वाज अ सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर, लेकिन मेरे लिए अष्टांगहृदय एक सब्जेक्ट नहीं है। मेरे लिए अष्टांगहृदय एक ग्रंथ नहीं है। मेरे लिए अष्टांगहृदय एक व्यक्ति नहीं है। मेरे लिए वाग्भट एक ऋषि नहीं है। मेरे लिए वाग्भट केवल एक बॉस इस प्रकार का आदमी नहीं है। मेरे लिए वाग्भट नेक्स्ट टू गॉड नहीं है। फॉर मी वाग्भट हिमसेल्फ इज गॉड, भगवान वाग्भट। मैंने वाग्भट को तो देखा नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि से मेरी जो जीवनी चलती है वाग्भट के कारण चलती है, इसलिए मैं वाग्भट को भगवान वाग्भट कहता हूँ। और जिसने उस वाग्भट को मुझसे मिलाया, उस वाग्भट को मेरे जीवन में उतारा, उस वाग्भट को मेरे कण कण से जोड़ दिया, उस व्यक्ति को, उस मेरे सन्मित्र को, उस मेरे गुरु को मैं भगवान समझता हूँ। वो था अनिल भाई। मेरे लिए दो भगवान है, वाग्भट और दूसरा अनिल। अनिलाय नमो नमः। ये वाग्भट में लिखा है नहीं स्थूलस्य बेसिजम, और उसके ऊपर जाकर मैं कहूंगा सही स्थूलस्य बेसिजम या यही स्थूलस्य बेसिजम। हाँ, स्थूल्य का रिट्रीट है। देखिए ये पेशेंट के व्हाट्सएप से आया हुआ 4 मई 2021 को फास्टिंग था 214, पीपी थी 350 और वजन था 88 ग्राम। बीच की रीडिंग छोड़ दीजिए, 24 और 29 जून की रीडिंग देखिए 111, 90, 173, 118 और वजन है 76। 12 किलो वजन कम हुआ है, 2 महीनों में 12 किलो वजन कम हुआ है। और शुगर नॉर्मल आपके 214 से 90 और 350 से 118 तक आ गई है। आपको क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन चाहिए? ये है संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन। मैं डायबिटीज की पेशेंट ट्रीट करता हूँ। अभी इस समय जो केस चल रही है वो 443 नंबर की, मैं 443rd केस इज नाउ गोइंग विद दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट। नथिंग इन द डार्क, अंधेरे में गोलीबार नहीं करना, अंधेरे में बाण नहीं चलाना। हर 15 दिनों के बाद शुगर का रिपोर्ट होगा, हर 3 महीने बाद HbA1c होगा। ऐसे नहीं, आपको ठीक लग रहा है ऐसे में उसको बोलता नहीं है, इट शुड रिफ्लेक्ट इन द रिपोर्ट। और उसके साथ उसका मसल ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका वजन कम नहीं होना चाहिए, उसको थकान नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल मेरी मसल क्रैम पायाला गोळे आले तसं नहीं होता काम, उसका हर दिन उत्साह बढ़ना चाहिए। ये काम करता हूँ शुगर के लिए। एंड आई डोंट यूज अंग त्रिअंग वसंत कुसुमाकर चंद्रप्रभा गुड़मार करेला, नो नथिंग। मैं शुगर कम करने का काम ही नहीं करता हूँ। मैं पेशेंट को पहले ही बोल देता हूँ कि आई डोंट गिव एनी पिल्स फॉर रिडक्शन ऑफ योर शुगर। वो तो आप कर रहे हो ना, आप ओए के ले रहे हो ना। आई एम नॉट अ सब्स्टिट्यूट, आई एम अ सोल्यूशन। मैं आपके मॉडर्न के ओए का रिप्लेसमेंट नहीं हूँ। आप मॉडर्न के ओए बंद करो, प्लेटफॉर्म में नजर आ और मेरी चलाओ जिंदगी भर। ना ना ना, ऐसे नहीं। आप मॉडर्न का भी ओए बंद करो, मेरा भी दवा बंद करो, एंड वी विल स्टिल मेंटेन योर HbA1c। श्रीखंड खा के भी 115 शुगर आती है। पेशेंट फोटो भेजता है, सर काल श्रीखंड खाल्लं, आजची शुगर 115 आहे, गोळी बंद करून। ये संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन है। आपके सामने आने वाले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को हेतु लक्षण औषध स्कंद के रूप में 2 से 10 गुना महाभूत भाषा में देखना है और उसके अनुसार औषध योजना करनी है, जिसके लिए संहिताओं में लिखा हुआ बाकी है। और आपको ना चिकित्सा स्थान तक जाने की जरूरत है। इट इज अवेलेबल इन सूत्र स्थान इटसेल्फ। समाप्यते स्थानमिदं हृदये अत्र अर्थः सूत्रिता सूक्ष्म प्रचंडन्ते सर्वतः बाकी स्थान
लेटेस्ट है ना, आप लेटेस्ट फोन यूज करते हो ना कि 331 यूज करोगे क्या वो डायल वाला नहीं करोगे ना, इसलिए मेरी दृष्टि से माय पर्सनल ओपिनियन शास्त्रीय हृदय श्रेष्ठ चलो सुश्रुत अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय और बाकी सारे ग्रंथ शास्त्रीय हृदय श्रेष्ठ तथापि सूत्र स्थान कर अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान काफी है, सूत्र स्थान के वाग्मता ऐसा आप कहते हैं तथापि प्रथमोधश्च इसमें भी केवल पहला आधा पार्ट यानी 15 अध्याय तक ही काफी है 16 अध्याय से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है स्नेहन केदन ममन विरेचन भक्ति नस्य नंदी शादी etc तो 15 अध्याय तक शोधनादिगण संदर्भ तक ही तत्वज्ञान है इसके सारे सिद्धांत है 14 अध्याय में वेदोपक्रमणीय है 13 अध्याय में दोषोपक्रमणीय और औषधि काल है 12वें अध्याय में सारे के सारे 6% प्रयोग हमारे लिए 11वें अध्याय में दोषों की वृद्धि के लक्षण के 10वें अध्याय में सारा रस का ज्ञान है तो नया क्या जितनी आवश्यकता है उतना सारा तो तत्रापि प्रथमो वर्धस्य तत्राध्याय चतुष्टयम कोई भी 4 अध्याय ठीक से पढ़ लो आपका एरर आ जाएगा काय तो आवाज ब्रेक हो जाए जरा एडजस्ट हां अलग अलग आवाज हेलो ओके अलग आवाज हेलो आला ठीक है अस्तु तो शास्त्रीय हृदय श्रेष्ठम तत्रापि सूत्र स्थानकम प्रथमोवर्धश्च तत्रापि तत्राध्याय चतुष्टयम ये मेरा वाग्भट का बायस है मेरा वाग्भट का पैशन इसको मैं भगवान समझता हूँ भगवान आगे 5 से हमें फर्स्ट ईयर में रोज 1.5 घंटा 1.5 साल तक अष्टांग हृदय पढ़ाया केवल 5 अध्याय इसलिए मैंने लिखा तत्राध्याय चतुष्टयम 4 अध्याय काफी हो जाते हैं आपका एरर समझने के लिए इस तरह से काम करोगे तो ऐसी जो गुत्थियां है वो सुलझेंगी आपके सामने कोलेस्ट्रॉल आएगा शुगर आएगी यूरिया आएगा स्थूल्य आएगा क्रिएटिनिन आएगा यूरिक एसिड आएगा आप उसको क्या समझोगे ये सारा रस रक्त में बहने वाला भाव पदार्थ है अतियोग में होने वाला जिसको हम पृथ्वी जल समझेंगे जिसको हम क्लेद समझेंगे क्या समझेंगे क्लेद समझेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9 से लेके अष्टांग हृदय सूत्र स्थान हेलो येतोय का आवाज हो सर येतोय आता येतोय का बघा हा येतोय पीपीटी काय झालं पीपीटी ऑफ स्क्रीन झाली ओके करतो हा बघा दिसतेय का हो दिसतीये सर रोल नाही होत आता दिसते का आता दिसते पीपीटी नाही आता नाही दिसते का आता नाही दिसत आहे अरे देवा हे जरा अवघडच असतं एक मिनिट हा आता दिसतेय का दिसतेय का यस सर हेलो हाँ पीपीटी दिसती है ओके तो जो आपके सामने पेशेंट आएंगे कोलेस्ट्रॉल हो शुगर हो यूरिया हो ओबेसिटी हो यूरिक एसिड हो क्रिएटिनिन हो और जो कुछ वो क्या है ये सारे भाव पदार्थ कहाँ से हैं ये सारे के सारे भाव पदार्थ जो है ये रस रक्तगत आपको पता चले हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको दोष रस गुण महाभूतों का अंडरस्टैंडिंग चाहिए और ये सारा क्लेद है अष्टांग हृदय निदान स्थान 9 से लेकर 16 तक क्लेद का मैनिफेस्टेशन है क्लेद जब संहत होके पृथ्वी के रूप में आ जाता है स्थिर हो जाता है तो अश्मरी बनती है अष्टांग हृदय निदान स्थान 9 क्लेद जब लिक्विफाई होके मूत्र के साथ मूत्रेण सह बस्तिम अभिप्रपद्यते तथा प्रमेहम अभिनिर्वर्तन्ते अष्टांग हृदय निदान स्थान 10 चरक निदान स्थान 4 फिर यही क्लेद अगर शरीर क्लेदो मौसमेदोभ्याम अभिमिश्रीभूय शरीरम अभिविसृप्तिम लभते तथा प्रमेह पिटकान जनयति चरक निदान 4 अष्टांग हृदय निदान स्थान 11 यही क्लेद जब एक विशिष्ट पीठिका के रूप में बस्ट आउट होता है तो शीघ्र विदाहितवाद विद्रधि अष्टांग हृदय निदान स्थान 11 यही क्लेद पूरा का पूरा द्रवीभूत होके कोष्ठगत त्वचा और मांस के संधि के बीच में आता है कुर्युस्त्वं मांस संधिगाहा उदर होता है अष्टांग हृदय निदान स्थान 12 यही क्लेद जब द्रवीभूत होके कोष्ठ के बजाय शाखा के त्वचा और मांस के बीच में आता है तो पांडु बनता है
यही क्लेद जब द्रवीभूत होके एक जगह जमा होता है, तत्र एक देश उत्थायी उत्सेदः शोथः उत्सेदम सहतम शोभम तम आहुर्निचयादता। लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ दोषाज इज कॉल्ड एज शोथ। इसलिए चरक के शोथ के अध्याय में शल्य और शालक्य के कई व्याधियों का वर्णन हुआ। त्रिशोथीय में अष्टांग हृदय सॉरी चरक सूत्र 18 में और चरक चिकित्सा 12 में श्वेत चिकित्सित में, वहां पर मसूरी का भी है, भगंदर भी है, उपजीवी का भी है, उपकुश भी है। चरक की दृष्टि से सारा शोथ है, मेरी दृष्टि से ये सारा क्लेद का मैनिफेस्टेशन है। अष्टांग हृदय सूत्र अष्टांग हृदय निदान स्थान 12, अष्टांग हृदय निदान स्थान 13 में ये सारा जो है क्लेद ये दौड़ने लगता है पूरे शरीर में, विसर्प। अष्टांग हृदय निदान स्थान 14 में ये सारा दौड़ता हुआ क्लेद जगह जगह जाके स्थिर हो जाता है और वहां की त्वचा में सड़न पैदा करता है, तो कुष्ठ बनता है। उसी कुष्ठ में कृमियों का निर्माण होता है। अष्टांग हृदय निदान स्थान 14। और थक हार कर इतना सारा घूम घाम के यही क्लेद जब ग्रेविटी की ओर चला जाता है, प्रलंबो पादौ तस्य लक्षणम पादयोर मूलम अस्थाय, तो ये वातरक्त बनता है। यही अष्टांग हृदय निदान स्थान 9 से लेकर 16 तक क्लेद का विविध प्रकार का मैनिफेस्टेशन है, क्लेद का जर्नी है, क्लेद की संप्राप्ति है। रोग की संप्राप्ति क्या है? रोग की संप्राप्ति है स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरण च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। है ये थोड़ी संप्राप्ति है संप्राप्ति अलग है ना। संप्राप्ति में जो लिखा है वही यहाँ पर लिखा है। यथा दुष्टेन दोषेण, है ना, यथा दुष्टेन दोषेण समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि च प्राप्य यथा चान विसर्पिता विकारान कुरते बहुन निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर जातिरागति। अष्टांग हृदय निदान स्थान 1 में संप्राप्ति का जो श्लोक है वो है यथा दुष्टेन दोषेण, दोष दुष्टि ऐसे हुई। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में लिखा है समुत्थान विशेषतः, दोषों का निदान से ऐसा दूषीकरण हुआ। स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः अर्थात यथा दुष्टेन दोषेण यथा चान विसर्पिता। अष्टांग हृदय निदान स्थान 1 में, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में स्थानांतरणी च प्राप्य निर्वृत्ति रामयस्यासो। अष्टांग हृदय निदान स्थान 1 में, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में विकारान कुरुते बहुन। देखिए दोनों श्लोक एक साथ पढ़ता हूं। स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरणे च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन यथा दुष्टेन दोषेण यथा चान विसर्पिता निर्वृत्तिरामयस्यास संप्राप्तिर्जातिरागति। बराबर। प्रतिरोगम इति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनी, प्रतिरोगम इति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनी दोषादेहे विकुर्वते उत्पादकारणस्य व्याधि जनन पर्यंतम गमनम संप्राप्ति। इस तरह से संप्राप्ति की 6 व्याख्याएं टीकाओं में ग्रंथों में उपलब्ध है। सभी का अर्थ एक ही है कि पहले क्या होता है, दोष दुष्टि होती है, फिर दोष दुष्ट होकर स्थानांतर में घूमते हैं और फिर रोग की निर्वृत्ति होती है, रोग की उत्पत्ति होती है, मैनिफेस्टेशन होता है, आविष्करण होता है। स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरणे च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। स एव कुपितो आइटिस इन्फ्लेमेशन, स एव कुपितो आइटिस समुत्थान विशेषतः स्थानांतरणे च प्राप्य इन्फ्लेमेशन कुरुते बहुन। स्टोमेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, मेनिंजाइटिस, कोलाइटिस, सिस्टाइटिस। अभी इसको थोड़ा सा हटाते हैं। स एव संचितो क्लेदः, स एव कुपितो दोषः नहीं, स एव संचित क्लेदः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरणे च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। फॉर्म अष्टांग हृदय निदान स्थान 9 अश्मरी से लेके अष्टांग हृदय निदान स्थान 16 वातरत्व तक, जैसे अभी हमने बताया। वो जो उस समय के हेतु लक्षण थे, उस समय के निदान थे, उस समय के रोग थे, उस समय के आविष्कृततम क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस थे, उसकी तुलना में आज क्लेद को हम रसरक्त में पकड़ रहे हैं। और उस क्लेद का स्वरूप वातरक्त में अलग था, अश्मरी में अलग था, प्रमेय में अलग था, गुल्म में अलग था, पांडु में अलग था, उदर में अलग था। वैसे आज के रसरक्तगत क्लेद का स्वरूप कभी कोलेस्ट्रॉल है, कभी शुगर है, कभी यूरिक एसिड है, कभी यूरिया है, कभी क्रिएटिनिन है, कभी मेद है, कभी स्थौल्य है, कभी ओबेसिटी है, कभी स्पिक्सनोदर लंबनम है, कभी सेंट्रल ओबेसिटी है, कभी पिरिफॉर्म शेप है। शब्द बदल गए हैं, पृथ्वी जल वही है, वही क्लेद है, वही दोष रस गुण महाभूत है। डायबिटीज क्या है? आपने 400 से ज्यादा केसेस ट्रीट किया ऐसा बोला अभी। हाँ, 15 दिन में आपने 300 से शुगर नीचे लेके आया ऐसे बोला। हाँ, HbA1 से आपने 14 से 7 तक लेके आए। पहले महीने तो 3 से नीचे आया था। 69 एज है पेशेंट का, 70 साल की उम्र में, ऐसे ही नहीं।
हाँ? 2 महीने में आप 12 किलो वजन नीचे लेके आ गए, व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज प्रमेय है? नहीं है। इतना आसान होता तो कितनी अच्छी बात होती। डायबिटीज ट्रांसलेटेड एज प्रमेय, उसको फिर चंद्रप्रभा दे दी, गुड़मार दे दिया और ठीक हो गया, नहीं होता है। शुगर कम होती है लेकिन बढ़ती है फिर से। मैं ये कहता हूं कि मगर मैं अगर शुगर ठीक करूं, वो बढ़ेगी नहीं। मैं आपके ओएचए भी बंद कर दूंगा, मैंने दिया हुआ मेडिसिन भी बंद कर दूंगा, और मैं आपके हर 3 महीने एचबीएवन से आपको 5.4 इतना रख के दिखा दूंगा। क्योंकि मुझे पेशेंट को रिलीफ नहीं देना है, मुझे पेशेंट को क्योर नहीं करना है, मुझे पेशेंट को नॉन रिकरेंस में लेके जाना है। पेशंटला बरं वाटतं कामा नये, पेशंट बरा होता कामा नये, पेशंट बरा राहिला पाहिजे, ही भाषणात बोलायची वाक्य नहीं है। ये केवल लेक्चर में कहने की बातें नहीं है, ये करके दिखाना है टेबल पे, पेशेंट के सामने, पेशेंट के रिपोर्ट्स में। ये देखिए आपकी शुगर टेम्पररी ठीक नहीं हुई है, आपके मैंने ओएच बंद कर दिया, आपका मेटफॉर्मिन बंद किया है, आपका ओलिगोपोस बंद है, आपकी ग्लूकाइकोमेट बंद है, आपको मैंने दिए हुए ये जो दवाई थी वो बंद है, और आपकी शुगर ठीक है। आपने आज श्रीखंड खाया है, वो भी ठीक है। आप आज चलने को नहीं गए, फिर भी आपकी शुगर ठीक है। और 3 महीने हो गए आपकी दवाई बंद करके, ओएच और मेरी दोनों, आपका एचबीएवन अभी भी 6 के नीचे है, आपकी एवरेज शुगर अभी भी 126 के नीचे है। डायबिटिक एसोसिएशन कहता है कि एवरेज ब्लड शुगर शुड बी बिलो 126। देखिए संख्या में बात करो, ऑब्जेक्टिवली बात करो, सब्जेक्टिव बात मत करो, रिपोर्ट के साथ बात करो। रिपोर्ट को ट्रीट मत करो, डोंट ट्रीट रिपोर्ट्स, ट्रीट द पेशेंट। आप पेशेंट को ट्रीट करो, उसका रिफ्लेक्शन रिपोर्ट में आएगा। अगर आपको लगता है कि आप उसको स्वस्थ करने जा रहे हो, तो दुनिया के किसी भी क्राइटेरिया में वो स्वस्थ ही होना चाहिए। आप उसका समाधान मत करो कि आपके ये लक्षण थे, वो चले गए, वो लोग, अरे नहीं नहीं, अगर वो स्वस्थ है तो दुनिया की किसी भी क्राइटेरिया में, इन एनी असेसमेंट मेथड, ही शुड बी करेक्ट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए डायबिटीज प्रमेय नहीं है, क्योंकि प्रमेय अधिकार की औषधि देके शुगर कम नहीं होती है, और ना ही एचबीएवन से नीचे आता है, और हो भी गई तो टिकती नहीं है। तो मेटफॉर्मिन अगर उसको 2 रुपए में मिल रही है, तो आपकी चंद्रप्रभा और आपका वसंत कुसुम और आपका वंग और आपका त्रिवंग वो 12 रुपए 15 रुपए में क्यों खरीदे? अफोर्डेबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं तो शुगर ट्रीट करने का मेडिसिन ही नहीं देता हूं, मुझे शुगर ट्रीट करनी ही नहीं है। मेरा दावा ऐसा है कि आपको डायबिटीज होने के पहले दिन तक, मान लो कि 35 साल में 40 साल में आपको डायबिटीज हुआ, तो आपके जन्म से 35 साल तक 40 साल तक आपका शरीर आपकी शुगर को नियंत्रित कर रहा था, उसको सम्मिलित कर रहा था, उसको एसिमिलेट कर रहा था। आज अचानक क्या हो गया कि आपने आपके पैंक्रियाज को, आपके मसल सिस्टम को, आपके लिवर को रिटायर कर दिया और ओएच को दे दिया सारा, इमीडिएटली उसको डेलीगेट कर दिया, इनको रिटायर करके। क्यों? उनकी जो क्षमता लूज हुई है, कम हुई है, डिक्लाइन हुई है, डिरेंज हुई है, डिटोरिएट हुई है, उसको फिर से नहीं जीवित किया जा सकता। आपको फ्रैक्चर हुआ तो आप क्या करते हो? आप जिंदगी भर क्रचेस पे चलते हो, व्हील चेयर पे चलते हो? नहीं, आपको फ्रैक्चर हुआ तो आप प्लास्टर लगाते हो, कुछ दिन के लिए व्हील चेयर पर चलते हो, बाद में आप क्रचेस लेके चलते हो, बाद में आप वॉकर लेके चलते हो, बाद में आप किसी वॉल का सहारा लेके चलते हो, किसी के कंधे का सहारा लेके चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते हो, फिर दौड़ने लगते हो, और एक दिन आप कुद्दी भी लगाते हो, छलांगे लगाते हो, है ना? यानी पांव टूटने के बाद कुछ समय ऐसा जरूर जाता है कि आपको फिर से वो शक्ति आने के लिए टाइम देना चाहिए। तो आपकी शुगर नियंत्रण करने की क्षमता कुछ कारण से अगर अक्षम हो गई है, डिटोरिएट हो गई है, डिरेल हो गई है, डिरेंज हो गई है, तो उसको उसी क्षमता में फिर से लाना, ये चिकित्सा है, न कि उसको याप्य रूप में जिंदगी भर मेडिसिन देना। उसको लाइफ टाइम मेडिसिन के इसमें नहीं ढकेलना है, उसको ड्रग डिपेंडेंट नहीं बनाना है, उसको औषधियों पर निर्भर नहीं बनाना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। उसकी वो क्षमता, उसका वो शुगर नियंत्रण करने का कौशल उसको फिर से ला के देना है, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्चर, इट इज नॉट एम्पुटेड लेग। काट के फेंक नहीं दिया है पैंक्रियाज। टाइप 1 को भी ट्रीट किया हूं, 13 एचबीएवनसी था 7 साल के बच्चे का, 21 यूनिट इंसुलिन चालू था, 3 महीने के बाद एचबीएवनसी 10 है, सी पेप्टाइड जो 0.17 था 0.34 पर है, 0.90 तक ले जाना है उसको। टाइप 1 की केसेस थोड़ी कम है इसलिए यहाँ पर दिया नहीं हूं, लेकिन टाइप 2 की है, 400 से ज्यादा है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि उस क्षमता को, उस कौशल को, उस शारीरिक व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है, पुनर्स्थापित किया जा सकता है, कि आपको जिंदगी भर फिर से ओएच लेने की जरूरत ना पड़े। यूर ओन बॉडी, आपका वही शरीर, आपकी वही धातुएं, आपकी वही अग्नि संस्था आपके शुगर को, आपके पृथ्वी जल को, आपके रस को
आपके मधुरता को, आप किसी भी भाषा में बोलो, रस में बोलो, गुण में बोलो, महाभूत में बोलो, मैं महाभूत में बोलता हूं, आपके उस पृथ्वी जल कॉम्बिनेशन को फिर से नियंत्रण में लाने की क्षमता रख सकती है, उसको ट्रीट करो। फिर यू कैन क्लोज योर मेडिसिन एंड यू कैन क्लोज OHA बोथ 100% विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ रिपोर्ट्स। और 1-2 दिन के लिए पूरा 1 साल उसको फॉलो करना है कि उसके चारों के चारों HbA1c के रिपोर्ट हर 3 महीने के बाद किए हुए 5.4 या 6 के आसपास है। ये हो सकता है। परिश्रम मिताहारो भूगतो अश्विनी सुतो, उसको कहना है कि देखो यार, तेरे को परिश्रम करना पड़ेगा, तेरे को मिताहार करना पड़ेगा, तू कैसे भी जिएगा और मेरे से मेडिसिन परचेस करेगा नहीं चलेगा। आई एम नॉट मेडिसिन सेलर, आई एम हेल्थ कंसल्टेंट, आई विल एजुकेट यू, आई विल ट्रेन यू, मैं तेरा प्रबोधन करूंगा, मैं तेरा प्रशिक्षण करूंगा, तब ये ठीक होता है। पेशेंट को ये मत कहो कि मैं तेरी शुगर ठीक करूंगा, नहीं, मैं तुझे ठीक करूंगा, आई विल ट्रीट यू। और उसको ट्रीट करने का ये तरीका है कि डायबिटीज इज नॉट टू बी ट्रांसलेटेड एज प्रमेह, कैंसर इज नॉट टू बी ट्रांसलेटेड एज अर्बुद। अगर ऐसे ट्रांसलेट करके होता तो कांचना को से पूरा का पूरा कैंसर ठीक हो जाना चाहिए, तो नहीं होता है। पांडु इज नॉट टू बी ट्रांसलेटेड एज एनीमिया, अगर ऐसे होता तो केवल नवाया स्लो से ताप्यादि लोह से सारा का सारा पांडु ठीक हो जाना चाहिए, तो नहीं होता है, नहीं टिकता है। हो सकता है कि शायद आपने कोई पुनर्वा मंडोर दे दिया, नवाया स्लो दिया, ताप्यादि लोह, उसका HB बढ़ भी गया, टिकेगा कैसे? आई एम नॉट हियर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ homeopathic medicines, I am not here for replacement of OHA, I am here for solution, I am here to treat you। हो सकता है, इसलिए मेरी समझ में डायबिटीज क्या है, ये रसरक्तगत क्लेद है। प्रमेय क्या है? बस्तीगत क्लेद है। डेफिनेशन पढ़िए चरक निदान 4 में, यदा तु शरीरज क्लेदः मूत्रेण सह अभिमिश्रीभूय बस्तौ प्रपद्यते तदा प्रमेहम। अगर बस्ती तक क्लेद गया ही नहीं है, कोई नहीं आता है कि नॉक्चुरल यूरिनेशन है, बहुत बार जाने, अरे कौन डायबिटीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते वो लोग, और वो यूरिन तक जाने से पहले उसको OHA देकर उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। आपका काम है कि क्या आप लॉन्ग टर्म जो इसका नुकसान होने वाला है OHA के कारण, आप उसको रिवर्ट कर पाते हो, आप उसको छुड़ा पाते हो, वो करो। शुगर ट्रीटमेंट करो, पेशेंट ट्रीट करो, क्लिनिकल कंडीशन ट्रीट करो। और वो क्लिनिकल कंडीशन ट्रीट कब होगी? इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट रसरक्त क्लेद है। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि आप मुंबई से निकले हो, आपको बेंगलोर जाना है, और आपका जो वहां से आने वाला फ्रेंड है जिसको आप बेंगलोर में रिसीव करने के लिए खड़े हो, मुंबई से निकला है वो, और आप उसको रिसीव करने के लिए बेंगलोर में खड़े हो, और वो बीच में सोलापुर स्टेशन पे उतर गया, तो आप जिंदगी भर बेंगलोर पे खड़े रहोगे तो भी आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे। बस्तीगत क्लेद यानी बेंगलोर है, जिसे आप प्रमेय कहते हो, जहां पर आप खड़े हो, जहां पर आपकी संहिता बात करती है, और वो तो सोलापुर में उतर गया, उसको मॉडर्न वाले ने रसरक्त क्लेद करके सोलापुर में पकड़ लिया। आप जिंदगी भर उसका इंतजार प्रमेय के रूप में, बस्तीगत क्लेद के रूप में, प्रमेय के रूप में करते रहो, वहां की ट्रीटमेंट करते रहो, नहीं होगा। वो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान, ऐसे हो जाता है। आपका पेशेंट जो है वो सोलापुर में है, उसका जो ग्लूकोज है वो ब्लड में है, वो रसरक्तगत क्लेद है, उसको ट्रीट करो। और क्लेद की ट्रीटमेंट है, क्लेद पृथ्वी जल है, पृथ्वी जल के विपरीत आपको काम करना है, तो आपको अग्नि वायु आकाश काम करना है। अग्नि वायु आकाश का मतलब होता है कटु तिक्त कषाय, और इसलिए कटु तिक्त का मतलब होता है, कषाय प्राय यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि कषाय स्तंभन करता है, इसलिए कटु तिक्त का प्रयोग करना चाहिए। और कटु और तिक्त कौन है? कटु तिक्तम च भूयिष्ठम अवृश्यम वातकोपनम। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे है कि वो ऐसे नहीं है, जिसमें पटोल है, शुंठी है, कृष्णा है, रसोन है, गुड़ुची है, ऐसी चीज। लेकिन गुड़ुची मधुर विपाक है, नहीं यूज करनी चाहिए। तो आपको क्लेद का हरण करना है, तो आपको फिर से मैंने जैसे बताया, आई डू यूज वचार इत्रादि इन मेनी केसेस। इसलिए मेरे पास वचार इत्रादि गण के 7 भावना दिए हुए टैबलेट का ढेर पड़ा रहता है, एटलीस्ट 6 से 12 किलो तक मेरे पास टैबलेट्स पड़े रहते हैं, बिकॉज आई यूज इन डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। मेरी एक स्टूडेंट है यवतमाल में प्रैक्टिस करती, उसका नाम बताना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा था कि सर मेरी 70% प्रैक्टिस वचार इत्रादि गणावर चालते। देखिए, द्रव्य इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी तो मैं पूरा वचार इत्रादि गण भी यूज नहीं करता हूँ, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वैसे मैं अभी उसमें से 4 द्रव्यों का यूज करता हूँ। अतिवेशा मेरे को अफोर्ड नहीं होती है। देखिए, मैं यहाँ पर वाग्भट के गुणगान के लिए, संस्कृत के गुणगान के लिए, आयुर्वेद के गुणगान के लिए, हाँ, संहिताओं की कवित्व के लिए नहीं हूँ। आई एम हियर फॉर प्रैक्टिस।
मुझे प्रॉफिट मेकिंग काम करना है, मुझे मेरी लाइफस्टाइल जो है वो 4 लोगों से ऊपर रखनी है, तो माय प्रॉफिट मार्जिन शुड बी हायर। सो जो अफोर्ड नहीं होता है ऐसे कंटेंट में यूज नहीं करता हूं। इतना नॉन अफोर्डेबल रसास्त्र कौन यूज करेगा? नहीं करता हूं मैं। उसका वो कारण ये कारण वो भी है कि आई डोंट अफोर्ड, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। माय इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस एंड माय प्रॉफिट शुड बी हायर। I don't want to practice on 2% and 10% and 100%, 200%. My profit margin should be 1000%, 10,000%. Therefore, अतिविषा में यूज नहीं करता हूं। अतिविषा का प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में मैं मुस्ता डालता हूं उसमें। कंद यूज करने हैं ना, कंदानी, अत्युग्राणी, वचा, शुंठी, मुस्ता, रजनी, ये कंद है, उनका वीर्य बहुत तीव्र है, मैंने देखा है वो। तो ऐसे द्रव्यों का मैं प्रयोग करता हूं मुस्तादिगण में, रौद्रादिगण में, असनादिगण में, सुरसादिगण में, एलादिगण में। तो ये मेरी थोड़ी सी प्राथमिक रूप की समझ है, ये मेरा एक बिगिनिंग लेवल का आकलन है, क्योंकि बहुत सारे केसेस नहीं है, 400 केसेस बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जिस विचारधारा पर मैं काम कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि वो काम करती है, औषध बंद करने के बाद भी काम, यानी वो रिलीफ नहीं है, यानी वो क्योर नहीं है, इट इज नॉन रिकरन्स। पेशंटला बरं वाटतं कामा नये, पेशंट बरा होता कामा नये, पेशंट बरा झाला पाहिजे, पेशंट बरा राहिला पाहिजे। नॉन रिकरन्स, अपुनर्भव, भेषज क्षपिते पथ्यम आहारे ही ब्रूहणम क्रमः। उसका ऐसे रखो कि उसको पॉजिटिव हेल्थ मिले। तथा सलभते शर्म सर्व पावक पाटवम धी वर्णेन्द्रिय वैमल्यम वृषताम दैर्घ्यम आयुषा, यहां तक उसको ले जाना। अष्टांग सूत्र स्थान 4 में वेगावरोध का सारा वर्णन होने के बाद ये आता है कि आपने भेषज देने के बाद, भेषज बंद करने के बाद उसको उस मुकाम तक ले जाओ कि तथा सलभते शर्म सर्व पावक पाटवम, उसका अग्नि सभी प्रकार का, भूताग्नि, धात्वाग्नि, जाठराग्नि अच्छा होना चाहिए। तो उसने बाद में अपत्य भी कर लिया तो भी उसकी शुगर बढ़नी नहीं चाहिए, शुड बी एबल टू एसिमिलेट इट, ये काम होना है। तो ये कुछ रिपोर्ट है, मैंने आपको दिखाए थे, 226 से अभी ये 74 तक आ गए। फिर ये HbA1c है 9.4, 223 एवरेज शुगर था, ये अभी 6.2131 तक आ गया। देखिए एग्जैक्टली 2 महीने का अंतराल है। फिर ये एक अच्छी केस है, 243 से 122 तक आ गया, ये 360 था, ये 177 तक आ गया। देखिए ये 7/12 का है और ये 30/1 का है, यानी 3 हफ्तों की बात है। ये जो मैंने आपको केस बताया 69 ईयर्स, देखिए यहाँ पर 68 ईयर्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये 12 फरवरी की केस है, 266 से 110 तक, 313 से 165 तक इस कॉर्नर में। फिर ये उसका HbA1c मैंने आपको दिखाया था, ये 14 HbA1c है, 68.9 एज है, 14 जनवरी का ये रिपोर्ट है, बहुत हाई थी। फिर एक महीने में 12 फरवरी को 10.1, 3 से नीचे आ गई। फिर 14/4 को 7.8 आ गई और पिछली बार जब आए थे 18/6 को तो ये 7 HbA1c है। 7 भी बराबर नहीं है और 1 से नीचे आना चाहिए। ये पहली शुगर थी 266313 जो नॉर्मल होके 106 113 तक आ गई अप्रैल में, यानी 2 महीने में। ये है मैंने अभी जो केस आपको बताई, 33 डेज में PP 447 से 148 और 394 से 129, ये है। ये 394447, ये है 11/5 को, और ये है 27/5 को 131 176, देखिए 11 मई 394 एंड डाउन बाय 263 to 131। फिर PP 447 डाउन बाय 261 to 176। फिर बाद में पिछले महीने का रिपोर्ट है 29/6 का 146 126 और 142। फिर 18/7 कुछ एक दो हफ्ते पहले का रिपोर्ट है 97 167। फिर ये मैंने बोला आपको 115 शुगर पेशंट ने भेजी है, गोळी बंद आहे, श्रीखंड खाल्लं तरी सुद्धा 115। और ये है उसी पेशेंट का वजन और फास्टिंग पीपी का रिपोर्ट 214 348, 88 kg वेट था, 90 118 फास्टिंग पीपी है, 76 है, मई से लेके जून तक 2 महीने में। ये 2 महीने में इतनी सारी चीजें हो जाती है। तो ये आपके सामने मुझे रखना कि अगर आप ठीक से काम करोगे तो क्षयात्मक संप्राप्ति हो, अल्फा एसिड डिजेनरेशन है, अल्फा एसिड डिजेनरेशन हो,
या डायबिटिक वुंड हो या डायबिटीज हो या ओबेसिटी हो। ये जो ओबेसिटी के केस है ऐसे बहुत सारे हैं। 15 दिन में 3 कम हो गए, 15 दिन में 6 कम हो गए, 15 दिन में 2 कम हो गए। जनरली 10% वेट रिडक्शन पर मंथ इज पॉसिबल आइडियली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अप टू 10% वेट रिडक्शन एंड इंच लॉस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेट रिडक्शन एक्चुअली। लोग आते हैं मेरे पास वेट रिडक्शन के लिए कि केजी इतना है। मैं उनको प्रबोधन करता हूँ, अवेयर करता हूँ कि देखिए आपको केजी लॉस नहीं करना है, आपको इंच लॉस करना है, आपको शैथिल्य कम करना है। मेदो मांसोति वृद्धत्वात् चलत्स्फिक् उदरस्तनः। ये जो चलत्व है, ये जो शैथिल्य है, ये जो लूज वेट है, ये जो टायर्स है, ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, ये जो लंबायमान है, इस फैट को या चर्बीला, इस मेद को, इस शैथिल्य को आपको लूज करना है। तो आप इंचेस गिनिए। आपका उदर आप 3 जगह गिनिए, नाभि पर, उसके ऊपर, उसके नीचे, 4-4, 5-5 इंच। आपका सीट गिन के रखिए, वेस्ट गिन के रखिए, थाइस गिन के रखिए और 15 दिन बाद गिनिए, 5% कम होना है। 1 महीने बाद गिनिए, वो 10% कम। इतने प्रबोधन के बाद क्या होता है कि सारा आहार नियोजन और सारा व्यायाम सभी लोग फॉलो नहीं कर पाते। दवाई दी है वो 15 दिन के बजाय 18 दिन चलाएंगे, 21 दिन चलाएंगे। तो आदर्श स्थिति में पेशेंट भी नहीं होता। इट इज अ टीम। ये जो रिजल्ट्स आते हैं शुगर के हो या डायबिटिक वुंड के हो या ओबेसिटी के हो, ये संतर्पणात्मक व्याधियों के रिजल्ट्स हैं। उनको नीचे करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेशेंट का जो वृत्ति है वो पथ्य पालन की ओर नहीं है। उसको ये भी खाना है, वो भी खाना है। सर मैं ड्राई फ्रूट खा लेती तालतील का, सर मैं थोड़े से फल खा लूं, सर रात को दूध पिया तो चलेगा। अरे यार अगर आप लैक्टोज फ्रुक्टोज उसमें डालोगे तो ये ग्लूकोज कौन ट्रीट करेगा? तो इतना अंधकार है समाज में, बहुत सारा असंयम है, धृति भ्रंश है। उस पर जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है, पेशेंस नहीं है। पेशेंट्स आर नेवर पेशेंट। इसलिए क्या होता है कि यद्यपि मैं कहूं कि 10% तक आप वेट लॉस, इंच लॉस कर सकते हो, वो अचीव नहीं होता है क्योंकि ये सारी दिक्कतें उसमें आती है। दिस इज अ टीम। डॉक्टर, औषध, पेशेंट, आहार और व्यायाम और रिपोर्ट, ऐसी ये 6 चीजों की टीम है। इसमें से एक भी चीज आप ना करोगे तो आप भटक जाते हो। इसलिए संहिताओं की दृष्टि से अगर इसको देखना है तो ये संतर्पणात्मक है। द्विविधोपक्रमणीय अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र 14 की दृष्टि से देखोगे तो ये एक संतर्पण स्तोत्र, जिसको बृहण कहा गया है, जो भौमापम है। भौम और आप अर्थात पृथ्वी और जल अर्थात मधुर अम्ल लवण अर्थात गुरु स्निग्ध शीत मृदु मंद स्निग्ध, इस प्रकार के आपके दिमाग में हर पल 5 महाभूतों के 2 ग्रुप, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, षड रसों के 2 ग्रुप, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, 20 गुणों के 2 ग्रुप, गुरुमंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर, ये 10 और उनके विपरीत ये अपदर्पणात्मक। आपके दिमाग में हर समय प्लस और माइनस, संतर्पण अपदर्पण, ब्रूहण लंघन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये अगर होगा तो आपको देखने में समझने में आसानी रहती है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको हर बार आवरण अमुक गत वात तमुक कुछ जरूरत नहीं यार। जिस निदान का आपके पास औषध नहीं है ऐसे निदान क्यों करते हो? मान लो आपने निदान कर लिया ये कफावृत समान है, ओके है भाई, कफावृत समान पर जाने वाला तेरे पास औषध है नहीं है ना, तो क्यों निदान किया वो? ऐसे निदान करना कि जिसका तेरे पास औषध है। हा? क्या जरूरत है ऐसे निदान करने की? हा? समानावृत व्यान, अच्छा कर लिया, क्या करेगा उसका? उसका चिकित्सा क्या करेगा? तो ऐसे निदान क्यों करने हैं? आसान निदान करो ना। शास्त्र ने अनुमति दी है कि आपका निदान महाभूतात्मक, रसात्मक, गुणात्मक, दोषात्मक हो सकता है, उतना ही करो और गामित्व ढूंढो, उस दुष्य तक जाने वाला गामित्व ढूंढो। आप शुगर क्या, ओबेसिटी क्या, डायबिटिक वुंड क्या और वो वर्टिब्रल डिजेनरेशन क्या और नी रिप्लेसमेंट क्या और लिगामेंट टेयर क्या, ये छोड़ दो। आप मैलिग्नेंसी तक ट्रीट कर पाते हो इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ गतत्व क्या है, गामित्व क्या है और उसका दोष रस गुण महाभूत क्या है। इतना ही मैंने समझने की ये प्राथमिक रूप से कोशिश की है। मुझे ये नहीं कहना है कि मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे ये भी नहीं कहना है कि मेरे सारे पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन सक्सेस रेट ठीक है कि जो अगले 10 पेशेंट को रेफर करता है। क्या होता है कि जब तक आपको ये आत्मविश्वास ना आए कि मेरी टैबलेट छूट चुकी है, तब तक आप दूसरे को रेफर नहीं करोगे। शुगर तो कोई भी कम कर सकता है, आप गुड़मार ले लोगे तो भी शुगर कम करना यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको शुगर नियंत्रण करने वाले उसके शरीर की क्षमता को पुनरुज्जीवित करना है, ये करना है आपको। आपको उसको ऐसे दौड़ाना है कि जैसे उसका कभी वर्टिब्रा डिजेनरेट ही नहीं हुआ था। यू आर देयर टू ट्रीट हिम अप टू नॉन रिकरेंस लेवल।
और ये तब हो सकता है जब आप मूलगामी चिकित्सा करो, और मूलगामी चिकित्सा कभी भी लाक्षणिक चिकित्सा नहीं होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होती है। सिम्टम के पीछे का हेतु ढूंढो, हेतु के पीछे का आहार विहार ढूंढो, आहार विहार के पीछे का दोष रस गुण महाभूत ढूंढो। अगर आप उसको ट्रीट कर पाओगे, देन इट इज पॉसिबल दैट यू विल नलिफाई द रूट कॉज, एंड उसके बाद उन्हीं अपथ्यों का सेवन करने के बावजूद उसको वो विकार फिर से नहीं होना चाहिए। सकाळी पानीपुरी, शाम को पाव भाजी, रात को भेल खा ली या रगड़ा पेटिस खा लिया तो भी उसको अम्ल पित्त नहीं होना चाहिए। इतना उसका अग्नि अच्छा करो। आई एम हेल्दी स्टार कंडीशन अप्लाई, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, ये नहीं करता हूँ, अरे वो क्या है? जिंदगी के सारे मजे लेने को आने चाहिए। इफ यू आर यंग, यू शुड बी एबल टू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग लाइक अदर पर्सन्स। घर में 4 लोग हैं, 3 लोगों को तकलीफ नहीं, एक को है, इसका मतलब पदार्थों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके शरीर में है। उसको उस पदार्थ को एंजॉय करने की क्षमता देने का काम आपके चिकित्सा ने करना चाहिए। लोग मुझे बहुत गालियां देते, कैसे कैसे बोलते हो? वाग्भट ने लिखा है, अत्यंत सन्निधानानाम दोषाणाम दूषणात्मनाम अहितेर दूषणम भूयो न विद्वान कर्तुम अर्हति, कि अहितकारक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, विद्वान न कर्तुम अर्हति। अरे लेकिन भूयो शब्द है ना उसमें, अहितेर दूषणम भूयो, बार बार मत करो, लेकिन कभी कभार तो उसको खाने दो ना वो चीजें। नहीं नहीं, मुझे वो सिग्नल पर जो वो सारा धुआं आता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई परफ्यूम डालता है तो मेरे को सर्दी होती है। अरे ऐसे कैसे होती है? इतने कैसे तुम तकलादू हो गए? इतने कैसे ब्रिटल हो तुम्हारा सारा सिस्टम? ऐसे होना चाहिए कि उसने बिना हेलमेट पहने सिग्नल पर खड़ा है और आगे की रिक्शा से रॉकेल का धूर निकल रहा है व्हाइट वाला, और फिर भी उसको छींके नहीं आ रही है, उसको सांस की तकलीफ नहीं हो रही है। दैट इज द हेल्थ। जो निदान सेवन उसको प्राधानिक हो रहा था, वो निदान सेवन उसको व्याभिचारी होना चाहिए। यहां तक दोषों का बल बनाना ये हमारा काम है। त्यागाद विषम हेतु नाम, ये ठीक है, लेकिन समानाम चोप सेवना, ये भी हमारा काम है ना। धातुओं को यहां तक सम बनाओ कि कुछ दिनों के बाद अगर वो विषम हेतुओं का सेवन भी करे तो धातुओं की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। न च सर्वाणि अपथ्यानि तुल्य दोषाणि, न च सर्वे दोषाः तुल्य बलाः, न च सर्वे शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। उस शरीर को इतना व्याधिक्षम बनाओ कि उसने अपथ्य भी कर लिया तो उतना दोष प्रकोप नहीं होना चाहिए, और दोष प्रकोप हो भी गया तो इतना प्रबल नहीं होना चाहिए कि रोग कर सके। नहीं, सर्वाणि अपथ्यानि तुल्य दोषाणि न च सर्वे दोषा तुल्य बलाः। क्यों? क्योंकि नहीं सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भवन्ति, यानी कुछ शरीर व्याधिक्षम तो होते हैं, व्याधि की क्षमता आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू एंड्योर द न्यूसेंस ऑफ दोषास, यू शुड बी एबल टू एंड्योर द न्यूसेंस ऑफ अपथ्य। आप किसी भी अपत्य को झट से फॉल प्रे हो गए, उसके भक्ष बन गए, त्याला जर तुम्ही बळी पडलात तो तुमच्या धातूंच्या बलाला काय अर्थ आहे? कच इसलिए मेरे परात्पर गुरु महागुरु कोल्हटकर सर कहा करते थे, पेशंटला बरं वाटतं कामा नये, पेशंट बरा होता कामा नये, पेशंट बरा राहायला पाहिजे, नॉट रिलीफ नॉट क्युअर बट द नॉन रिकरन्स शुड बी द मोट्टो, शुड बी द एम ऑफ आवर ट्रीटमेंट, and it is possible, very much possible, if you treat in these lines. तो मुझे लगता है कि मैंने आपका दिया हुआ समय जो है उसका उल्लंघन कर दिया है। मैं इतना ही कहूंगा कि सामने आने वाला रिपोर्ट, सामने वाला क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कुछ भी हो, आपको उसको बड़ी सामान्य भाषा में, अगर आप द्विधोपक्रमणीय के अध्याय के अनुसार उसको दोष रस गुण महाभूत में स्पेल करने की कोशिश करोगे तो मुझे ये अत्यंत विश्वास है कि उसके आगे का अध्याय 14वें के आगे 15वां अध्याय है, उस अध्याय में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कि उस दोष रस गुण महाभूतात्मक स्पेलिंग को डिकोड करने के लिए, तद विपरीत द्रव्य का चयन करने के लिए आपके पास अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 में 33 गण है। उसमें आपको औषध अनायास और सुनिश्चित रूप से मिल ही जाता है। तो संस्कृत में एक श्लोक है ऐसे कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थों को तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसको मैंने कन्वर्ट करके आपको श्लोक बताया था, शास्त्रेषु हृदयम श्रेष्ठम तत्रापि सूत्र स्थानकम प्रथमोर्धश्च तत्रापि, पहले 15 अध्याय, तत्राध्याय चतुष्टयम, कोई भी 4 अध्याय ठीक से पढ़ लो। और ये पढ़ने के लिए आपको कुछ आइडिया चाहिए, कुछ प्रशिक्षण चाहिए, कुछ जुनून चाहिए, कुछ सातत्य चाहिए, कुछ निरंतर एक असिस्टेंस चाहिए, कुछ पहले 10 कदम चलने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बोला वैसे हम कुछ, ये हमारी वेबसाइट के नाम है और ये हमारा डिजिटल प्रेजेंस है, वहां पर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं उसके लिए विद्यार्थियों की अपेक्षा पूर्ति के लिए। ये नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूं, नहीं,
मैं आपका सहपाठी हूं, मैं आपका सहाध्यायी हूं, मैं आपका सहकर्मी हूं। उसको करते करते मुझे जो समझ में आ गया, उसको देने का ये एक अनायास प्रयास है। इसमें कोई भी प्रॉफिट की, व्यवसाय की, धंधे की बात नहीं, ये प्रकाशन की बात है। मेरे परात्पर गुरुओं ने किसी भी लालच के बिना, किसी भी स्वार्थ के बिना, किसी भी पैसे की अपेक्षा के बिना ये सारा मुझे दिया हुआ, इसलिए देने की व्यवस्था है। यूट्यूब पर, मिस क्लाउड पर जो भी है वो सारा का सारा फ्री है। आज का भी लेक्चर संस्थान ये संगठन, ये जो संस्था है ई आयुर्शाला, उनके संयोजकों की अनुमति से कुछ दिनों बाद ये भी लेक्चर आपको अपलोड करके ऊपर में देना। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? एक निष्ठा चाहिए। ये जो वाक्य है गीता के 9वें अध्याय में, ये वाक्य आपके जीवन में उतरना चाहिए। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम् इत्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहा। वाग्भट को लोग कहते हैं कि सूत्र स्थाने तो वाग्भटा। ओरिजिनल श्लोक आपको पता है, निदाने माधव श्रेष्ठा सूत्र स्थाने तो वाग्भटा, शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठा तर्क सुचिकित्सित। मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, मैंने बोला निदाने वाग्भट श्रेष्ठा। हाँ ठीक सुना आपने, निदाने वाग्भट श्रेष्ठा सूत्र स्थाने स एव ही, वही वाग्भट ही सूत्र स्थान में श्रेष्ठ है। शारीरेच चिकित्साया, शारीर में भी वाग्भट श्रेष्ठ है, चिकित्सा में वाग्भट श्रेष्ठ है। शारीरेच चिकित्सा, निदाने वाग्भट श्रेष्ठः सूत्र स्थाने स एव ही शारीरेच चिकित्सायाम सर्वस्थानेषु वाग्भटः। कितना वाग्भट बैठा है, और उस वाग्भट को अनन्य चिंतन में रखिए। अन्य चिंतन, किसी अन्य चीज की चिंता विचार करना ही नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परि उपासते, परितः उपासनम, सभी ओर से वाग्भट की उपासना, हेतु की ओर से, लिंग की ओर से, औषध की ओर से, सूत्र की ओर से, शारीर की ओर से, सभी ओर से। ये जना परि उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, नित्याभियुक्त, ऑलवेज कनेक्टेड। कभी कभार मैं वाग्भट को देख लूंगा ऐसे नहीं, नित्याभियुक्त। देन वाग्भट प्रॉमिसेस यू योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा। योग तेरे पास जो नहीं है वो लाके दूंगा। यू डिमांड इट कि मेरे पास ये नहीं, लाके दूंगा। क्षेम जो दिया है वो निरंतर तेरे पास रखूंगा, चिरंतन रूप से वो तेरे पास रहेगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये वाग्भट का वचन है, और वाग्भट कभी झूठ नहीं बोलता है। वाग्भट का वचन है दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः पाठवबोधानुष्ठाने अधिगच्छत्यतो ध्रुवम्। इसलिए ये जो मेरा सामान्य रूप से एक आकलन था, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपके हृदय में जो चरक सुश्रुत वाग्भट है, उन चरक सुश्रुत वाग्भट के चरणों में व्याख्यान संपन्न करता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि से आयुर्वेद ये चरक सुश्रुत वाग्भट नाम के ग्रंथ नहीं है। अभी तो इन ग्रंथों का निर्वहन करने वाले, इन ग्रंथों का अनुसरण करने वाले, इन ग्रंथों का अनुष्ठान करने वाले आप जैसे जो सारे वैद्य है, मेरे सहकर्मी है, मेरे सहपाठी है, मेरे सहाध्यायी है, आप जैसे जो मेरे समकालीन लोग हैं, वही आयुर्वेद का साकार, समूर्त और सचेतन रूप है। तो आपके हृदय में बसे हुए उस संहिताकारक को, उस वाग्भट को, उस चरक को, सुश्रुत को, उस अनिल पांसे को यह व्याख्यान में समर्पित करता हूं। और पुनः एक बार मेरे सारे गुरुओं के नामों को उच्चारण करके इस व्याख्यान को यहाँ पर विराम देते हैं। माधवाय दिलीपाय विजयाय तुलाय च दिवाकर समीराभ्याम अनिलाय नमो नमः। माझा देव, माझा गुरु, माझा सन्मित्र भगवान वैद्य द अनिल पांसे, उसकी कृपा से जितना भी मुझे आकलन हुआ, जितना भी योग्य लगा, उचित लगा, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपके संयमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद। हेलो, Thank you very much, sir, for such an informative session. It was really full of knowledge, and we are very lucky to got the chance of hearing your lecture, sir, on the occasion of Guru Purnima. On this auspicious day of Guru Purnima, I would like to do Naman and Vandan to all of my Gurus, including Rishikesh Mhatre, sir. Sir, can you hear me? Sir, we'll wait हो for बोला। 1 minute. Sir, we'll wait for 1 to 2 minutes. ओके, So that if anyone would have any question, they can ask in chat box.
314. Could you organism can improve the sound quality, voice breaking, PPT not visible. Question. Sir, we will read questions Which for are you. most important? Which are most important chapters of Ashtang Hridaya for first year BMS? सही में बताओ, जब हम पढ़ा करते Yes. थे BMS में तो अष्टांग हृदय सिलेबस में ही नहीं था, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि अष्टांग हृदय के कौन से चैप्टर उपयोगी है? अच्छा, जोक छोड़ दीजिए, हम जब पढ़ा करते थे तो अष्टांग संग्रह था, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि हमने अष्टांग संग्रह कभी खोला ही नहीं। हमारे जो गुरुजी थे अनिल पानसे जी, जिनका नाम मैंने मेरे भगवान के रूप में लिया, उन्होंने हमें कहा कि अष्टांग संग्रह खोलने की जरूरत नहीं, अष्टांग हृदय कंठस्थ कर लो। तो अष्टांग हृदय का पूरा सूत्रस्थान कंठस्थ कर लिया था, तो 1 से 30 अध्याय पूरे 700 श्लोक कंठस्थ है आज भी। तो मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। फिर भी एक अनुभव के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि पहले 15 अध्याय भी ठीक से कर लेंगे तो भी अच्छा है, अगर उतनी क्षमता नहीं है तो कौन से भी आपके हिसाब से 4 अध्याय कर लीजिए, वो भी आपको उतना ही समर्थन देंगे, उतना ही सामर्थ्य देंगे, उतना ही कौशल देंगे कि जितना आपकी प्रैक्टिस चलने के लिए आवश्यक है। वाग्भट बहुत दयालु है, बहुत अनुकंपा वाला है, बहुत करुणाकारी है। मैं जामनगर में जब एंट्रेंस देने के लिए गया था तो मेरे पास केवल 2 बुक्स थे, एक अष्टांग हृदय की संस्कृत गुटका, गुटका का मतलब होता है ओनली संस्कृत श्लोक, नो ट्रांसलेशन, हिंदी भी नहीं, संस्कृत भी नहीं, टीका भी नहीं, मराठी ट्रांसलेशन, इंग्लिश कुछ नहीं, ओनली संस्कृत गुटका। गुटका का मतलब होता है द बेयर टेक्स्ट ऑफ संस्कृत श्लोक, और रसरत्न समुच्चय के पहले 11 अध्याय। 2 पुस्तकें मैं साथ लेके गया था और भगवान की कृपा से उस एंट्रेंस में 180 क्वेश्चंस में से 156 क्वेश्चंस सॉल्व करके मैं फर्स्ट आया था, केवल अकेले वाग्भट की कृपा से। तो ऐसी जिसकी जिंदगी चली है वो आपको क्या बताएगा कि वाग्भट का कौन सा अध्याय इंपॉर्टेंट है? मेरी दृष्टि से पूरा का पूरा वाग्भट इंपॉर्टेंट। ऐसा है कि मैं जीता ही वाग्भट पर हूँ। मैं पेशेंट देखता हूँ तो मेरे दिमाग में ऊपर श्लोक अपने आप तैरने लगते हैं कि देखो ये जो पेशेंट है ये इस श्लोक में बताए हुए चीजों के अनुसार है, और अनायास ही उस श्लोक की तथा विपरीत जो चीजें होती है वो चिकित्सा के रूप में मेरे दिमाग में उतरती चली जाती है। ये वाग्भट की असीम कृपा है, इसलिए मैंने लिखा कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासना। वाग्भट को आप नित्याभियुक्त रूप में पर्युपासना में रखो, अनन्य चिंतन के रूप में रखो, वो आपको सब कुछ दे देगा। तो कौन से अध्याय वो आप सिलेक्ट करो, उसके लिए हमने एक कोर्स चला के रखा है ऑनलाइन, वो आप वहां पर देख लीजिए। असाध्य आजाराविषयी आपलं काय मत आहे? असाध्यों का लिखा ही नहीं ना चरक ने, उसने लिखा साधनम न तो असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। चरक सूत्र 1 में चरक ने लिखा साधनम न त्वसाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। मधुमेह, वो देखा नहीं यार मैंने कभी मधुमेह। मैंने जैसे बोला ना, जो निदान ट्रीट करने की मेरी औकात नहीं है ऐसे निदान में नहीं करता हूं। मैंने मेरी जिंदगी में मधुमेह नहीं देखा है। मैं यूरिन की परीक्षा करके पेशेंट को ट्रीट नहीं करता हूं। मैं मेरे लिमिटेशंस आपको बता देता हूं। मेरे सामने पेशेंट आता है, मैं उसको देखता हूँ, उसके उदर को देखता हूँ, जिह्वा को देखता हूँ, नख को देखता हूँ, मुख को देखता हूँ, नेत्र को देखता हूँ, त्वंग नख विणमूत्र बोला है ना, उतना ही देखता हूँ। उसकी मूत्र की परीक्षा मैंने की नहीं है कभी भी, क्योंकि मेह यह मूत्रगत व्याधि है, लेकिन डायबिटीज मूत्रगत व्याधि नहीं है, वो रसरक्तगत है, और रसरक्तगत का रिपोर्ट लेके वो आया हुआ रहता है। इसलिए आई हैव नेवर सीन एनी ओज इन मूत्र। मधुमेह का मतलब क्या होता है? ओज निकलता है मूत्र में। अरे यार, मधुमेह होता अगर तो आज तक पता चलता ना कि ओज क्या है। किसी ने तो देखा होता मधुमेह के मूत्र में ओज। किसको पता है ओज क्या है? तो मैं अशक्य चीजों की बातें नहीं करता। वाग्भट ने लिखा है शक्यानि युगान रूपाणी रसायनानि विनिर्दिष्टानि। वाग्भट इतना ग्रेट है, वेरी प्रैक्टिकल। उसने लिखा शक्यानि युगान रूपाणी, जो शक्य है वो बताऊंगा। इसलिए वाग्भट में आपको पलाश द्रोण में सो जाओ फिर आपके दांत निकल जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे और आपको नए दांत और नए बाल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है वाग्भट में। वाग्भट लिखता है शक्यानि, वट एवर इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो मेरी दृष्टि से मैंने कभी मधुमेह देखा नहीं। अगर होता मधुमेह तो आज तक किसी को तो मूत्र में ओज दिखाई देता और वो लिख पाता कि यस यस ओज इज रियली ईशल लोहित पित्तकम वगैरह है। किसको पता है ओज क्या है?
तो जो नहीं है अस्तित्व में, ऐसे निदान क्यों करना है? आपने विषम ज्वर देखा है कभी? अन्य दुष्क, तृतीयक, चतुर्थक देखा है? अरे इतना पेशेंट के पास पेशेंस है क्या? उसको टेम्परेचर आने के बाद अगले घंटे में पैरासिटामोल ले लेता है। कहां से आपको दिखाई देगा अन्य दुष्क, तृतीयक, चतुर्थक? जो निदान अस्तित्व में ही नहीं है, वो निदानों के पीछे क्यों पड़ना है? प्रैक्टिकली बात करो। गुड कैन साथ में आहार लाइक राइस, मिल्क, कर्ड्स बी स्टॉप सडनली? यस यस, ऑफ कोर्स स्टॉप, मस्ट बी स्टॉप। मैं तो ये खाने ही नहीं देता हूं, मिल्क और कर्ड। राइस तो जिंदगी है ना। अन्नम का मतलब क्या है? राइस का पर्यायी नाम ही अन्नम है। अन्न क्या है? मंडपेया विलेपिना ओदनस्य च लाघवम। ओदन का पर्यायी नाम ही अन्न है ना। तो उसको क्या करेंगे? ओदन तो खाना है, लेकिन ओदन खाने का विधि जो है वो है यश्चाग्नि औषधक्वाथ साधितो भ्रष्ट तंडुलः। ये जो है इस प्रकार से आपने वो खाना चाहिए। स्थौल्य के पेशेंट में मैं कर्ड बंद करता हूं क्योंकि वो जीवनावश्यक नहीं है। मिल्क बंद करता हूं क्योंकि वो बढ़ता हुआ बच्चा नहीं है ना अभी कि उसको दूध की आवश्यकता पड़े। लेकिन अन्न का निवारण कैसे करोगे? राइस जो है वो अन्न है, लेकिन उसको खाने का विधान बदल सकते। कुकर का अन्न मत खाओ। सुधोत प्रसृत स्विन्नो त्यक्तोष्मा चौदोनो लघु, उसको बाहर बनाओ। उसका जो स्टार्च है, उसका जो मांड है, त्याची जी पेज आहे ते काढून टाका। मोकळा फडफडीत भात खा। आजकल का भात कुकर में कैसे बनता है? बर्थडे केक की तरह उसको काटना पड़ता है। और प्राचीन काल में भात कैसे बनता था, चावल कैसे बनते थे, राइस कैसे बनता था? आप उसको दाना दाना परोस सकते थे। आज का इतना चिपकता है कि जैसे कि फेविक्विक लगाया उसको। इसलिए वो कर नहीं कुकर लगाने ही हमें। कुछ ऐसे पेशेंट आते कि नहीं सर हमारे पास टाइम नहीं है, कुकर का ही खाएंगे। तो मैं उसको बोलता हूँ, आगे ऑप्शन दिया है वाघभट ने, यश्चाग्नेय औषधक्वाथ साधितो भ्रष्ट तंडुलः। तांदूळ भाजून घ्या आणि आग्नेय औषधाचा त्यात काहीतरी समावेश करा। अदरक डाल दो, जीरा डाल दो, धनिया डाल दो, पकाते समय कुकर में डालना है तो। और भ्रष्ट तंडुलः, चावल पहले सेक के रखो, रोस्ट करके रखो, चाहे माइक्रोवेव में करो, कोई प्रॉब्लम। तो भ्रष्ट तंडुलः आग्नेय औषधक्वाथ युक्तो, अगेन द सेम रिजल्ट्स आर देयर, बट ऑप्शन इज ऑलवेज लेसर। जो ओरिजिनल है, आप उसको ऑप्शन दोगे तो कुछ ना कुछ तो दुष्परिणाम आएगा ही आएगा। इसलिए मैं राइस बंद नहीं करता हूं। चलो हो गया। Okay, sir. That was, क्या यार I इतना think that was इमोशनल? last. ये कौन है? साने किसने कुछ लिखा है कि आई फील बैड दैट आई कांट मीट अनिल पांसे सर, आई एम फ्रॉम गोवा। आई कैन सी अनिल सर इन नहीं यार, बहुत छोटा आदमी हूं मैं। अनिल पांसे तो मुझसे 100 गुना 1000 गुना महान आदमी था। वो तो भगवान है, हम तो भक्त है। अनिल की क्या तुलना करते हो मुझसे? अनिल तो महासागर है, हम तो बूंद भी नहीं है। आई एम जस्ट अ ड्रॉपलेट, ही वाज ओशन। धन्यवाद, अपने अनिल का स्मरण किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा भावुक हो गया मैं। थैंक यू। तो अनिलाय नमो नमः ऐसा कह के व्याख्यान संपन्न करते हैं। आपके संयमित श्रवण के लिए धन्यवाद। Thank you, sir. There are many appreciations in the chat box. Sir, you have हाँ, सुन रहा हूँ presented मैं। many cases. You have presented many cases treated by you, and that will really help for all of us in clinical practice. And it was very enlightening lecture on Samhita and its clinical application. It will really beneficial for students and practitioners to study Samhita and to apply this knowledge clinically. Thank you very much, sir. वेलकम।